Hello and welcome to IFR IAS. IAS for a reason. I am Akash Sharma and I am excited to bring this updated PT365 series of lectures for you. The first video for updated PT365 will be environment. As you know, हमारी जो समुराई स्ट्रैटेजी का वीडियो है उसमें भी करंट अफेयर्स में environment, economy, science, tech, these come first, right? So this is what we'll be focusing on even in the updated series. As you know, we have already covered 3 subjects for PT365: environment, economy and science and tech. Now we will be going through the updated PT365 for its completion. इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम IR and Polity का PT65 उठाएंगे. But to be very honest with you, PT65 for Polity is not really that important because उसमें static जो cover होता है, जो static चीजें होती है लक्ष्मीकांत से जो आप पढ़ते हो, वही चीजें लिखी होती है घुमा फिरा के. So we'll see if time permits us, we will do both of those. But अभी के लिए updated PT65 इस पे हम focus करेंगे. About me, you know, my name is Akash Sharma. I have been mentoring close to 150 students. I have gone through the drill 4 times, so this is why I might be in a good position to guide you guys. So this is why I am mentoring close to 150 students. My idea behind this initiative is basically to make learning a fun experience and making UPSC fun again. So that's it. Caveats, as you already know, highlighted PDF अगर आपको चाहिए या फिर अगर आपको free prelims mentorship भी चाहिए, like the other 150 people in our group who are basically taking it, so you can join our Telegram channel which is IFR IAS UPSC. इसको आप Telegram पे सर्च कर सकते हो. Similarly, इसको आप highlighted comment जो हमारा first pinned comment होगा उसमें भी you will get this detail. Apart from this, if you want to follow us on Twitter, Instagram, Facebook, this is the ID for all of it. Trying to cover PT65 in a short time, so we will be prioritizing speed over depth, but I have tried to cover all the articles that are mentioned in the updated PT65. But if everything is a priority, nothing is. That is why I will be providing एक index जहाँ पे जो important articles है वो उसमें index में marked है. So if you want to skip other articles, you are free to do so. Therefore, important articles को हम ज़्यादा time देंगे. Lecture will be bilingual as usual, Hindi and English. So let us begin. So let us begin with the environment part of it. First of all, climate change is the first topic. पहला आर्टिकल है आर्टिकल 6.2 which is the mechanism of Paris agreement. इसके अंदर बेसिकली जो भी इंटरनेशनल फाइनेंस होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज उसकी बात की जाती है. सो यूनियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टू मोबिलाइज इंटरनेशनल फाइनेंस एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनलाइज करी है. Now the activities are mentioned here. GHG mitigation के लिए your alternate materials like green ammonia and removal activities के लिए CCUS जो है carbon capture, utilization and storage, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फाइनलाइज करी है. अब इसके साथ साथ एक नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट भी नोटिफाई करी है. नेक्स्ट इज इट इज मैंडेटेड, ये जो बॉडी होगी NDAIAPA, this will be mandated to decide type of projects that may take part in the international carbon market. तो ये बॉडी डिसाइड करेगी कौन से प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में जा सकते हैं. आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट, इट अलाउज कंट्रीज टू वॉलंटरीली कोऑपरेट. ये वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है इसके अंदर जहां सारे की सारी कंट्रीज दे ट्राई टू अचीव द एमिशन रिडक्शन टारगेट्स जो उनके NDCs विच इज देयर नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके अकॉर्डिंग एमिशन टारगेट्स को ये लोग अचीव करने का ट्राई करते हैं. इसके अंदर आपको पता होगा देयर इज अ टर्म कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स. जो कंट्री के ज़्यादा कार्बन एमिशंस है दे कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली टू मीट देयर NDCs. सिमिलरली कंट्री जिसके बहुत कम कार्बन एमिशंस है दे कैन सेल द कार्बन क्रेडिट्स एंड टेक मनी इन एक्सचेंज फॉर दैट. दैट इज हाउ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वर्क्स. आई होप यू नो दिस. नाउ आर्टिकल 6.2 जो है वो ट्रेडिंग इन GHG एमिशन रिडक्शंस उसकी बात करता है. सो एज वी सॉ ये हमने देख लिया. अदर इनिशिएटिव्स एंड न्यूज़, तो गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. नाउ गाया, एज यू नो, इट्स ऑल्सो द ग्रीक वर्ड फॉर द अर्थ गॉडेस. तो अर्थ गॉडेस का नाम भी गाया है ग्रीक में. जस्ट अ टिडबिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द गाया हाइपोथेसिस. यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, या गूगल करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ गाया हाइपोथेसिस क्या है. सो दैट्स इट. तो इसका बेसिक एम ये है टू अनलॉक $3 trillion ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज नीडेड ईच ईयर टू रीच नेट जीरो, reverse nature loss and
restore biodiversity by 2050. ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोएलिशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रांजिशन करना चाहती है ग्लोबल इकोनॉमी को टू नेट जीरो GHG एमिशन वाली इकोनॉमी, दैट इज योर ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो। इसको लॉन्च किया था 2021 में किसने? UN स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस एंड COP26 प्रेसिडेंसी ने। रेस टू जीरो कैंपेन जो है UNFCCC का, उसका ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड GCRF, GCRF क्या है? इट विल बी वर्किंग टू टैकल चैलेंजेस फेस ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये इसका मेन काम होगा। तो रेजिलियंस का मतलब ये कि क्लाइमेट रेजिलियंस को एक तरीके से ये एम्पावर करने की बात है। तो इसमें बेसिकली जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, सेंट्रल ट्रेड यूनियन। इट वाज फाउंडेड इन 1972 बाय ईलाबेन भट्ट इन अहमदाबाद। सो ईलाबेन भट्ट रिसेंटली डाइड एंड शी पास्ड अवे इन अहमदाबाद। तो सेवा उनका एक काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इसका इंडिया पार्ट है, तो जी हाँ, इंडिया इसका पार्ट है। क्या है IEF? तो IEF इज बेसिकली द वर्ल्ड्स largest international organization of energy ministers from 72 countries who basically decide कि कैसे environmentally clean हम सब चीजें रख सकते हैं एंड एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। अब एनर्जी डायलॉग है ये एक, इसके सिग्नेटरीज जो IEF चार्टर के, दीज आर द मेंबर कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रियाद, सऊदी अरेबिया में। सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स अ बिट इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली आपको वहां पे दिखते नहीं है हेडक्वार्टर्स। इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोचेस, तो इनॉग्रल मीटिंग हुआ है IFCMA का, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ना व्हाट इज IFCMA? इट इज बेसिकली अ न्यू फोरम ऑफ द OECD कंट्रीज। तो OECD का फोरम है। काम क्या है इनका, एम क्या है? तो बेसिकली टू इम्प्रूव ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स थ्रू डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। Environment and Climate Sustainability Working Group comes under the G20. That's all that you need to remember. You can move ahead. Fly ash utilization. तो MOEFCC ने recently एक notification जारी किया है on fly ash utilization. कौन से एक्ट के अंदर हुआ है ये? तो EPA एक्ट के अंदर, Environment Protection Act के थ्रू इसको किया गया है। की हाईलाइट्स जो 2021 में भी एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें थी? एक चीज थी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो पल्यूट करेगा, जो पल्यूटर होगा, ही विल पे। That was the idea behind polluter pays principle, and there was a fine for non-achievement of targets. CPCB का रोल उसमें डिफाइंड था कि वो देखेगी कि कैसे फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन होगा, एंड जो 4-year साइकिल थी जो प्रेजेंट थी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, उसको रिड्यूस करके 3 साल कर दिया गया था। अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें क्या क्या है? फर्स्ट, जो अमेंडमेंट 2021 में आया था उसमें सिर्फ वो थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली उन पे ही लागू हो रहा था जो पुराने थे। नाउ न्यू थर्मल पावर प्लांट्स जो 2021 के बाद एस्टैब्लिश हुए उन पे भी ये रूल्स लगेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, न्यू थर्मल प्लांट्स विल हैव टू अचीव 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन अ पीरियड ऑफ 4 years. दिस इज गिवन। देयर इज समथिंग कॉल्ड लेगेसी ऐश। जो भी ऐश हमारे ऐश पॉन्ड्स में, डाइक्स में जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, राइट, उसमें स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं लेगेसी ऐश। लेगेसी ऐश जो स्टोर होगा विद TPPs, इसको फुल्ली यूटिलाइज करना होगा इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years, ये कहा गया है। तो ये 1 April 2022 से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, यू हैव द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेशन। तो CPCB को अलॉन्ग विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनको बनाया गया है कंपीटेंट अथॉरिटी जो सर्टिफाई करेगी वेदर दिस हैज बीन डन सेफली और नॉट। सो दिस इज वन थिंग। नाउ, बैन ऑन एस्टैब्लिशिंग और डेजिग्नेटिंग एनी न्यू ऑपरेशनल ऐश पॉन्ड्स। कोई भी नया ऑपरेशनल ऐश पॉन्ड जो है वो एस्टैब्लिश या डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा, जो भी आपकी कोल या लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कर रही है या बना रहे हैं। मैंडेटरी यूजेज ऑफ फ्लाई ऐश बेस्ड कंस्ट्रक्शन मॉडल कहाँ पे? जो भी 300 किलोमीटर रेडियस है आपके कोल या कोई भी थर्मल पावर प्लांट का, उसके 300 किलोमीटर में पब्लिक या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन दोनों में ही मैंडेटरी यूज है, फ्लाई ऐश का यूज को मैंडेटरी कर दिया गया है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ, व्हाट इज फ्लाई ऐश? तो बेसिकली जो भी पार्टिकुलेट मैटर है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स, उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। इंडियन कोल में एज यू नो देयर इज मच मोर ऐश कंटेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज। फ्लाई ऐश के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? तो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अलॉन्ग विद इट देयर इज आर्सेनिक एंड लेड। इसको याद करने का तरीका है केसियो लॉ, CASIOLA। C stands for calcium, A stands for aluminium, S stands for silica, I for iron, O for oxygen, and La, which is lead and arsenic. This is another thing.
सेकेंड इज इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. तो एडवर्स इम्पैक्ट से फ्लाई ऐश के क्या इंक्रीज हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर में. सेकेंड, ये जो फ्लाई ऐश होता है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके प्लांट्स के ट्रीज के लीव्स पे जाके. दैट इज वाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो रिड्यूसेस. नेक्स्ट बेनिफिट्स है फ्लाई ऐश के कि एक तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है विच इज वेरी कार्बन इंटेंसिव, तो उसका सब्सटीट्यूट हो जाता है आपका फ्लाई ऐश. सेकेंड, इट इज ड्यूरेबल एज इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द कॉन्क्रीट पॉन्ड्स. जो भी कॉन्क्रीट रोड्स होती है उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देता है. कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के काम आ सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के काम आ सकता है, एंड मर्क्यूरी के रिमूवल के लिए काम आ सकता है. इंडिया में फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन अभी मोर देन 90% है. पहले 10% हुआ करता था 1990s में. नाउ इट इज मोर देन 90%. दैट्स अ गुड थिंग. एक ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप बनाई है. किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाई है. बस इतना याद रख लो. दैट्स इट. First All India Annual States Minister Conference recently was held under the basically title of Water Vision at 2047. वाटर के बारे में, वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड हमें दो चीज पता होनी चाहिए. जो वाटर सप्लाईज की बात है, इरिगेशन की बात है, दैट इज इन द स्टेट लिस्ट. अगर मैं इंटर स्टेट रिवर्स की बात करूं या रिवर वैलीज की डेवलपमेंट की बात करूं, दैट फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट. सो डू रिमेंबर दिस डिफरेंस. नेक्स्ट वी हैव द स्पॉन्ज सिटी. बेसिकली जो बाकी बातें कही गई है, दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स. आई थिंक यू कैन नो दिस इवन, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनना बहुत डिफिकल्ट है इसमें से. स्पॉन्ज सिटी. स्पॉन्ज सिटी का बेसिक आइडिया जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ था. देयर वाज दिस चाइनीज आर्किटेक्ट हु गिव दिस आइडिया. तो बेसिकली ऐसी सिटी जहां पे फ्लड्स या पॉल्यूटेड जो रन ऑफ है वो एब्जॉर्ब हो जाए पैसिवली. ठीक है, रेनफॉल को अच्छे से इकोलॉजिकली आप यूज कर पाओ, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज सिटी. ऐसी सिटी जहां पे अच्छे से पानी का यूज हो जाए. ठीक है, जो भी रेनफॉल का वाटर है उसका. तो उसके अंदर ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन्स, पेवमेंट्स दैट आर परमिएबल इन नेचर, जिसमें पानी सोख ले, वैसा कोई पेवमेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज सिटी. स्पॉन्ज कैसे पानी सोख लेता है ना, सिमिलरली अगर आपकी पूरी सिटी ऐसे मटेरियल से बने जो पानी सोख ले, तो आपको पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी. रिवर सिटीज अलायंस. रिवर सिटीज अलायंस एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. ये बोथ गंगा बेसिन एज वेल एज नॉन गंगा बेसिन स्टेट्स पे एप्लीकेबल है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स मिलकर इसको बेसिकली रन कर रहे हैं. रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड स्कीम. रिवॉर्ड स्कीम क्या है? इट वाज लॉन्च टू हेल्प नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए इसको बनाया गया था. नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरशेड, water divide, river basin and the similar kind of things. तो इसका मुझे आप डिफरेंस मुझे नीचे बताओ. तो दिस इज गिवन इन योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, सो आई होप यू नो द आंसर फॉर दिस. स्कीम इज एन एग्रीमेंट बिटवीन वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका एंड ओडिशा. तो ये आपको पता होना चाहिए. दैट्स इट. ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन. तो अभी एक रिसेंट पेपर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ने जारी किया था, जिसमें दे हैव सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर रिवाइवल ऑफ वाटर कंजर्वेशन. तो annual water availability per person has decreased from 5,200 cubic meters in 1951 to 14,086 in 2021. तो annual water availability जो है एक इंसान के लिए that has constantly decreased. इंडिया सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है इन द वर्ल्ड. 25% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज आर कंटामिनेटेड. दिस इज अनदर कॉज ऑफ कंसर्न. नाउ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इन इंडिया क्या क्या है, तो उसको याद कर लो आप लोग अपने हिसाब से. How I used to remember a couple of things. I'll just show you my method. For example, Ladakh है. So I used to just remember कि Ladakhi people, जो लद्दाख के people है, they are very nice. So they have a kind of zing in their, they're very nice and all cool. तो zing है उनमें से. This is how I used to remember. बिहार तो it ends with HAR. So Ahar and Bihar I think थोड़ा sound similar. So that is how I remembered बिहार. आपातानी tribe आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में. That is how I remember अरुणाचल प्रदेश आपातानी. नागालैंड ज़ैबो, असम में डोंग्स है, आंध्र प्रदेश में चेरुवू, और केरला है कोरम्बूज एंड क्या बाउरीज आपको पता है, राजस्थान में बाउरी होती है. सो दैट्स इट. ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स. तो MOFCC ने नोटिफाई किए ई वेस्ट रूल्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर द EPA एक्ट. तो अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपके ई वेस्ट रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं. एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक has been opened in भोपाल. अब इस बार जो रूल्स आए हैं 2023 में, उसमें क्या क्या चीजें ऐड की है. तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज इट हैज एडेड 2 substances. वन इज कैडमियम एंड लेड इन सोलर पैनल्स
प्लस लेड इन मेडिकल डिवाइसेस, इनको एग्जेम्पशंस में ऐड कर दिया है जो शेड्यूल 2 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके। नाउ एवरी प्रोड्यूसर शैल प्रोवाइड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इक्विपमेंट, ये सब चीजें इनको बतानी पड़ेगी। अब कौन सा पोल्यूटेंट कहाँ मिलता है, तो लेड आपको CRT जो कैथोड रे ट्यूब हमारे पुराने मॉनिटर्स आते थे कंप्यूटर के या पुराने टीवीज आते थे उसके अंदर मिलता था। कैडमियम आपके चिप रेजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में मिल जाएगा। मर्क्यूरी PCBs में मिल जाता है। बेरिलियम जो आपके मदरबोर्ड्स में मिल जाएगा। सो सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड अदर पोल्यूटेंट्स विच हैव बीन इन न्यूज, तो विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या है, इट्स अ कार्सिनोजेनिक गैस विच इज बेसिकली यूज्ड टू मेक PVC, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसको बनाने के लिए जो विनाइल क्लोराइड है उसका यूज होता है, बट इससे कैंसर और ओरल कैंसर का खतरा है। सेकंड, जब आप इसको बर्न करते हो विनाइल क्लोराइड को, तो इसमें फॉस्जीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दो गैसेस बेसिकली ये देता है। नाउ फॉस्जीन आपको पता होगा हाईली टॉक्सिक एंड कलरलेस गैस है एंड इट वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन द वर्ल्ड वॉर 1, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। यूरेनियम, एक रीसेंट रिपोर्ट आई है CGWB की जिसमें 12 स्टेट्स में पाया गया है कि यूरेनियम लेवल्स हैव गॉन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स। नाउ द सेफ लेवल्स दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO इज 30 पार्ट्स पर बिलियन। तो ये याद रखना बिकॉज इस पे UPSC एक स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है एंड स्टेटमेंट दे दिया एंड मे बी वी वोंट नो कि एग्जैक्टली कितना है, तो इसको याद करो 30 पार्ट्स पर बिलियन है। पंजाब जो है इट इज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट व्हेन इट कम्स टू यूरेनियम कंटामिनेशन। कॉजेस क्या है, तो वही है नेचुरल यूरेनियम कंटेंट है एक्विफायर रॉक्स में। ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर आप ग्राउंड वाटर का करोगे तो सिर्फ यूरेनियम बचेगा, तो अगेन ज्यादा कंटामिनेशन होगा। एंड बायोकार्बोनेट्स हैव बीन यूज्ड टू ब्रिंग यूरेनियम आउट ऑफ द सोर्स रॉक्स, दैट इज अनदर रीजन। इससे आपकी किडनी फेलियर, रीनल फंक्शंस ये सब अफेक्ट हो जाता है, बोन में भी टॉक्सिसिटी आ जाती है। बाइस्फेनॉल ए केमिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो बेसिकली एक स्टडी ने पाया है कि बहुत सारे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट हो गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइस्फेनॉल ए इन द अर्बन सिटी के ड्रेन्स। नाउ बाइस्फेनॉल ए क्या है, एक केमिकल है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर यूज प्राइमरीली इन द पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। तो PCB जो होता है प्लास्टिक, उसके अंदर ये यूज होता है। कॉमनली यूज्ड इन शैटर प्रूफ विंडोज, आईवेयर एंड वाटर बॉटल्स, तो यहाँ पे यूज होता है। अब ये लीच हो जाता है इन योर फूड एंड बेवरेजेस एज वेल, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, तो ये सब चीजें हो सकती है। मर्क्यूरी जो होता है कहाँ पे यूज होता है, स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे स्किन लाइटनिंग चीज मतलब बेसिकली जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां पे मर्क्यूरी का यूज होता है। नाउ इट हैज बीन सेट अ लिमिट ऑफ 1 mg per 1 kg विच इज 1 ppm, 1 parts per million फॉर मर्क्यूरी इन स्किन लाइटनिंग। ये किसने, मीनामाटा कन्वेंशन ने ये लिमिट तय करी हुई है। अब क्यों इसका यूज होता होगा, तो बिकॉज इट इज शाइनी एंड सिल्वर व्हाइट मेटल, ठीक है, और वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, बट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है विच वी ऑल नो। तो ब्रीदिंग, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, काफी कुछ चीजें इससे हो जाती है। कमिंग टू एशियन वाटर बर्थ सेंसस 2023 में कंडक्ट किया गया है। किसने कंडक्ट किया है, तो बेसिकली इंटरनेशनल वाटर बर्थ सेंसस जो कंडक्ट करवाती है बॉडी विच इज वेटलैंड इंटरनेशनल, उसने इसको कंडक्ट करवाया है। नाउ इंडिया में इसको कौन कंडक्ट करता है, तो इट इज बेसिकली बिटवीन वेटलैंड इंटरनेशनल जो ग्लोबली करती है प्लस योर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नाउ BNHS क्या है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन NGO एंड इसको डेजिग्नेट किया गया एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। सो ये एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे, तो एक सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे का मतलब एक साथ किया गया है ना, कहां पे किया गया है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में साउथ के, यहां पे किया गया है आपका वल्चर सर्वे। नाउ ये ट्राइपार्टाइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहां हुई थी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। कहां है मुदुमलाई, बेसिकली इट इज इन तमिलनाडु। क्यों करना है सिंक्रोनाइज करके, जिससे डुप्लीकेशंस ना हो एफर्ट्स में, है ना, एक ही वल्चर को 2 बार आप ना गिनो, इसके लिए इट हैज बीन डन इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। It will be conducted after dividing the Wayanad landscape. So Wayanad Wildlife Sanctuary, as you know, it's in Kerala. It is contiguous to 2 tiger reserves, basically Nagarhole and Bandipur of Karnataka. ऊपर के साइड ये आती है and नीचे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु की वो आ जाती है। That is the beauty of Wayanad Wildlife Sanctuary. Now vulture conservation and breeding centers in Pinjore. तो बेसिकली एक पिंजौर में आपका वल्चर ब्रीडिंग सेंटर विच इज कॉल्ड जतायु, इसको लॉन्च किया गया था बीर शिकरागढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास।
VCBC हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंड BNHS जो NGO है, उन दोनों का एक जॉइंट एफर्ट है। इसमें 3 स्पीशीज जो है वल्चर्स की उसको सेव करने की बात कही गई, व्हाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड, बेसिकली योर वल्चर्स, इन 3 को सेव करने की बात कही गई है। इसके अलावा वाइल्ड जो वल्चर रेस्टोरेंट्स है वो भी लॉन्च किए गए हैं गादचिरोली, नासिक, थाने, महाराष्ट्र के इन एरियाज में। डाइक्लोफेनाक पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, विच इज बेसिकली इट इज टॉक्सिक फॉर वल्चर्स इवन इन स्मॉल डोजेस, जो उनको किडनी फेलियर कॉज कर देता है। सो डाइक्लोफेनाक इज ऑल्सो बैंड इन इंडिया। Vultures in India, 9 species of vulture have been recorded in India. 4 species are found in southern India. Now, abhi it falls under Appendix 2 of CITES and Schedule 1 and Schedule 4 of the Wildlife Protection Act. इसके अलावा कौन से फैक्टर्स है बिहाइंड द फॉल ऑफ पॉपुलेशन? इट इंक्लूड्स फूड कंटामिनेशन, जो भी ड्रग्स आप इसमें डाल देते हो, दूसरा जो है हैबिटेट डिग्रेडेशन। कौन से ड्रग्स हैं? डाइक्लोफेनाक भी सो, एसिक्लोफेनाक, Nimesulides, I don't know if I'm pronouncing it right, and ketoprofen. So these are the drugs. Mangroves ecosystem, तो मिष्टी एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, उसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, दैट्स कॉल्ड मिष्टी। नाउ मिष्टी एम्स एट द मैंग्रोव प्लांटेशन along the coastline and on salt pan lands. तो सॉल्ट पैन लैंड्स भी होते हैं या कोस्ट लाइन होते हैं, वहां पे मैंग्रोव्स प्लांट करने की इसमें बात कही गई है। अब इसको कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली मनरेगा जो स्कीम है, राइट, जॉब गारंटी स्कीम एंड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, इन सबको बेसिकली कन्वर्जेंस के थ्रू मैंग्रोव को प्लांट किया जाएगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस स्कीम मिष्टी। मैंग्रोव्स क्या होता है? तो बेसिकली आपको पता है, जो भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन होती है वहां पे प्लांट जो मिलता है लिटोरल प्लांट है। लिटोरल प्लांट्स का मतलब जो ओशंस के पास मिलता है वैसा। नाउ कोस्टल वुडलैंड या फिर टाइडल फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स क्या है? तो क्लाइमेट रेगुलेशन, बेसिकली जो कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल है मैंग्रोव्स का, इट इज 3 to 5 टाइम्स हायर देन द ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से भी ज्यादा इसका 3 to 5 टाइम्स हायर होता है योर कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल। नेक्स्ट, कोस्टल डिफेंस ऑफ अप टू 5 टाइम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ वॉल्स बना दूं या फिर कुछ भी करूं, उससे ज्यादा 5 गुना, मतलब 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है आपका मैंग्रोव्स का बेसिकली प्लांटेशन से बचने वाला ब्रेक वाटर्स। मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इट्स अक्रॉस इंडिया, आपको दिख जाएगा। इसमें एक्सेप्शन याद रखो, केरला कोस्ट पे मैंग्रोव्स नहीं है, बस इतना याद रखना है, केरला कोस्ट पे नहीं है। बाकी प्लेसेस इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, आई वुड से जस्ट रिमेंबर केरला पे नहीं है। मैंग्रोव्स इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स मिलते हैं, गुजरात में सेकंड एंड थर्ड इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नाउ मैंग्रोव्स यहां सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब आप मुझे बताओ वेटलैंड सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? दिस यू हैव टू टाइप इन द कमेंट्स बिलो। मैंग्रोव्स हमको वेस्ट बंगाल में मिले, लेकिन वेटलैंड्स कहां मिले? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टाइप। नेक्स्ट, रिलेटेड न्यूज, SAIME इनिशिएटिव विच इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट। कहां? वेस्ट बंगाल में, जहां पे जो फार्मर्स है दे आर प्लांटिंग मैंग्रोव ट्रीज अराउंड द श्रिम्प पॉन्ड्स। तो जो श्रिम्प होता है उसको एक्वाकल्चर से जो ये लोग ग्रो करते हैं, उसके आसपास मैंग्रोव ट्रीज ग्रो करने की बात कर रहे हैं। दिस इज बीइंग कंसीव्ड बाय द नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज एंड द ग्लोबल नेचर फंड। कमिंग टू द 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस, 5th IMPAC 5, इसको इम्पैक्ट 5 बोला जा रहा है। ये वैंकूवर कनाडा में अभी फिनिश हुई है। नाउ व्हाट आर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज? तो ये इंडिया के मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है, थाने क्रीक, मालवान मरीन सैंक्चुरी, ऑल ऑफ दिस। सो बहुत सारे एरियाज है। लेट्स कम टू दिस इम्पैक्ट 5 थिंग। इम्पैक्ट 5 क्या है? इट्स अ ग्लोबल फोरम जहां पे ओशन कंजर्वेशन के जो प्रोफेशनल्स है और हाई लेवल ऑफिशियल्स है वो जाके मिलते हैं एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को सेव करने की बात करते हैं। इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन बाय 2030। सो 30 by 30, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द इम्पैक्ट 5 का एम। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, हमने इसके बारे में एनवायरमेंट PT के लेक्चर में देखा था। सो आई होप यू हैव सीन दैट लेक्चर, वी हैव कवर्ड दिस न्यूज। तो उसका जो इस बार थीम था, आर ओशन आर फ्यूचर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल फॉर एक्शन, उसके अंदर ये उसका एक पार्ट है, इसको सपोर्ट करता है। MPA क्या है? इट इज अ सेक्शन ऑफ ओशन वेयर गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड लिमिट्स ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। करंटली 7.65% ऑफ द ओशन इज कवर्ड बाय योर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो लेस देन 10% अभी MPAs में, ये याद रखना, कोई MCQ में आ जाएगा लेस देन 10% है या ग्रेटर देन 10% है। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज लेस देन 10% ऑफ द ओशन का एरिया कवर करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट MPAs
किस में नोटिफाई किया जाता है, आइदर एज नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज अंडर द WPA एक्ट। मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क MSP, तो कंट्री का फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क जो है पुडुचेरी में लॉन्च किया गया था, एंड इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव। इसको कौन ओवरसी करेगा, तो बेसिकली यूनेस्को की इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, दैट विल बी ओवरसीइंग दिस थिंग। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी इसको देखेगी along with the UT of Puducherry and the National Center for Coastal Research. Draft Geoheritage Sites and Georelics Bill, because it is in the draft stage, I think it is not really important, but हम समझेंगे कि Geoheritage Sites होता क्या है। Geoheritage Sites क्या होता है, ऐसी रेयर एंड यूनिक जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक उसकी सिग्निफिकेंस होती है, जियोलॉजिकल या फिर जियोमॉर्फोलॉजिक सिग्निफिकेंस, जहां पे कुछ मिनरल या फिर कोई पुरानी सी चीज या फिर कुछ स्टैटियोग्राफिक इंक्लूडिंग कुछ केव्स अलग सी है या नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर्स है जो बहुत अलग है या यूनिक है, दैट इज कॉल्ड अ जियो हेरिटेज साइट। ठीक है, नाउ इसको कौन आइडेंटिफाई करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ यू हैव टू टेल मी सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं। सो टाइप दिस इन द कमेंट्स बिलो। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस बट यू नीड टू बेसिकली आंसर कि कौन से मिनिस्ट्री में आता है। नाउ ऐसी 32 जियो हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। इसमें फॉसिल पार्क्स है, शिवालिक फॉसिल पार्क है जैसे हिमाचल प्रदेश में, जियोलॉजिकल मार्वल्स है लाइक लोनार लेक इन महाराष्ट्र, रॉक मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। GSI एज आई टोल्ड यू इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है, लेकिन अब मुझे बताओ सर्वे ऑफ इंडिया किसमें आती है। केवलाव देव नेशनल पार्क, तो राजस्थान इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ जू इनसाइड दिस पार्क विच इज भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, इसको भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी भी बोलते हैं। रामसार साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। It is due to its strategic location in the middle of the Central Asian Migratory Flyway. अब आप ये मुझे बताओगे कितने फ्लाईवेज जो है वो इंडिया से गुजरते हैं when it comes to the bird flyways, तो कितने फ्लाईवेज गुजरते हैं ये मुझे बताओ कमेंट्स में। Wetlands of Kelau Dev are not natural, ये नेचुरल नहीं है, they are dependent on monsoon and on water pumped in from outside. कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में आती है, यहाँ पे more than 340 birds of different species have been found during the Asian waterbird census. सह्याद्री माउंटेन रेंजेस इसके बीच में आती है, गोदावरी रिवर, यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ग्रासलैंड मिल जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक, ये सब यू कैन सी इट हियर। समान बर्ड सैंक्चुरी यूपी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ऑक्सबो लेक है, सीजनल ऑक्सबो लेक जो कि एक रामसार साइट भी है। सारस क्रेन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इंडियन स्टार टॉर्टोइज के बारे में सिर्फ इतना जान लो कि ड्राई लोलैंड्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। मालाबार ट्री टोड कहाँ मिला है अभी रिसेंटली, मोलम नेशनल पार्क में। कहाँ पे होता है मोलम नेशनल पार्क, गोवा में है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। रोडोडेंड्रॉन्स, सो रोडेंड्रॉन्स के अंदर होते हैं, ये आपके बेसिकली दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालयाज में मिलते हैं, विच हैव मोर देन 1/3 ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। रोडोडेंड्रॉन्स बेसिकली जिसका नाम रोज होता है ग्रीक में, इट इज नेटिव टू द टेम्परेट रीजन्स, तो ये टेम्परेट रीजन्स में मिलता है, कहाँ, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को अगर आपको देखना है कि कोई जगह पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहां के रोडोडेंड्रॉन्स को बेसिकली यू कैन स्टडी, ओके। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एसोसिएटेड विद हार्ट, डिसेंट्री एंड डायरिया, उसके लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, इसको राइनो बॉन्ड भी बोला गया है। वर्ल्ड बैंक का ये एक स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड है, किस लिए किया गया था, तो 5 ईयर का $150 मिलियन का डेवलपमेंट बॉन्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्लैक राइनो पॉपुलेशन जो है साउथ अफ्रीका की, उनको बचाने के लिए ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है। तो प्राइवेट कैपिटल को लाना है राइनो को बचाने के लिए साउथ अफ्रीका के। फाइनेंसिंग कहां से आ रही है, GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, वहां से इसकी फाइनेंसिंग आ रही है। पार्ट ऑफ द GEF ब्लेंडेड फाइनेंस इनिशिएटिव ऑल्सो, तो याद रखना ब्लेंडेड फाइनेंस इनिशिएटिव किसका है, GEF का ये पार्ट है। नेचर रिस्क प्रोफाइल, तो UNEP एंड S&P ग्लोबल हैव लॉन्च्ड द नेचर रिस्क प्रोफाइल। इट इज बेसिकली एम्ड एट enabling financial sector to measure and address nature related risk, ठीक है। मेथोडोलॉजी किस पे बेस्ड है, जो आपने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखा था, उसके ऊपर इसकी पूरी मेथोडोलॉजी बेस्ड है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन साउथ एशिया, याद रखना 75 रामसार साइट्स हो चुकी है, अभी हमने बहुत सारी ऐड करी थी, दिस इज व्हाई 75 रामसार साइट्स हैं।
कमिंग टू लार्ज डैम्स इन इंडिया, तो अराउंड 3700 डैम्स, एक स्टडी ऑफ यूएन ने बोला है कि अराउंड 3700 डैम्स जो है इंडिया में, दे विल लूज 26% ऑफ द टोटल स्टोरेज एरिया बाय 2050। क्यों? बिकॉज सेडिमेंट्स वहां पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं। सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होना मतलब सेडिमेंट्स जो है वो नीचे या उसके साइड में बहुत सारे आके स्टोर हो गए, चिपक गए, जिसकी वजह से जो एरिया है फॉर वाटर टू फ्लो वो कम हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम डैम्स में देखने को मिल रहा है। इंडिया में लार्ज डैम्स का डेफिनेशन क्या है? तो अगर कोई डैम की हाइट मोर देन 15 मीटर्स है फ्रॉम द डीपेस्ट फाउंडेशन टू द क्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड अ लार्ज डैम। नाउ लार्ज डैम्स इन इंडिया कितने? 5000 से भी ज्यादा लार्ज डैम्स है इंडिया में, एंड द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स इज महाराष्ट्र। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ग्लोबल सिनेरियो में आप देखोगे तो चाइना हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स, देन यूएसए, फिर इंडिया। नाउ डैम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हाइट जब 100 मीटर से ज्यादा हो, या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटी दैट इज मोर देन 1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, तो ये आपके नेशनल इंपॉर्टेंस वाले डैम होते हैं। दीज आर 65 डैम्स जो है इंडिया में ऐसे है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो रिसेंटली एक मेगा आईसीटीपी वो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहां पे लॉन्च किया गया। इट इज बीइंग प्लान्ड फॉर द गैलिथिया बे ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। अब ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो केरला में, ठीक है, इफ आई रिकॉल करेक्टली इट इज इन केरला, तो वहां पे फर्स्ट आईसीटीपी बना है। दिस इज वन मोर आईसीटीपी दैट दे आर मेकिंग। अब इसका मतलब क्या होता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का? बेसिकली जो भी सामान कोई दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में जा रहा है, राइट, यूएसए से फॉर एग्जांपल चाइना, तो बीच में ट्रांसशिपमेंट भी होता है। मतलब एक शिप आई, उसने सामान दूसरी शिप को दिया और दूसरी शिप आगे लेके जाएगी, तो जिस पोर्ट पे वो चेंज करते हैं अपना सामान, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे चीजें होती है। तो गैलिथिया बे के बारे में आपको मुझे सिर्फ बताना है कि गैलिथिया बे नेशनल पार्क के कौन सी चीज खास है। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड द कैम्बेल बे नेशनल पार्क, CAMPBELL नेशनल पार्क। तो उसके बारे में, कैम्बेल बे नेशनल पार्क के बारे में भी मुझे बताओ, ठीक है, इन द कमेंट्स। सो दिस इज आईसीटीपी प्रोजेक्ट, दैट इज इट। कमिंग टू सर्कुलर इकोनॉमी, यूएनडीपी ने लॉन्च किया है ड्राइव फॉर इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? तो बेसिकली कोई ग्रीन प्रोडक्ट बनाओ, है ना, तो नॉन टॉक्सिक, लॉन्ग लाइफ, रिसाइक्लेबल बनाओ, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्लीन रखो, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, बेटर सर्विस दो उसको, जिससे जो भी कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी तो उसका जो लाइफ स्पैन होगा प्रोडक्ट का, दैट विल एक्सपैंड। अब एंड ऑफ लाइफ जब वो खत्म हो जाए प्रोडक्ट, उसके बाद उसको कलेक्ट करने की भी कोई फैसिलिटी हो, एंड लास्टली उसको रिसाइकिल करने के लिए भी कोई प्लान हो, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये यूएनडीपी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ इसको साइन अप किया है। इसमें सेटिंग अप ऑफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज या स्वच्छता केंद्र, दिस विल बी डन। इनिशिएटिव विल बी अ स्केल अप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ऑफ यूएनडीपी फ्लैगशिप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इसी को देखता है। एक होता है लिनियर इकोनॉमी, उसका ऑपोजिट है सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे हमने ऊपर देखा, मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, जहां पे शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग जो है वो करी जाती है। क्यों? जिससे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कम से कम हो जाए। एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, तो एक फ्रेमवर्क जो है सेबी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स, रेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों एरियाज में कंपनीज क्या कर रही है उसका एक उनको एक डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, उसका एक फ्रेमवर्क जो है सेबी ने दिया है। प्रपोज्ड ESG डिस्क्लोजर्स बाय लिस्टेड एंटिटीज, ESG रेटिंग्स इन सिक्योरिटी मार्केट एंड ESG इन्वेस्टिंग बाय म्यूचुअल फंड्स, ये पूरी की पूरी चीजें इसमें करी गई है प्रपोज। क्या है, ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है सेबी ने किया है ESG फ्रेमवर्क। ESG क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स stakeholders understand how an organization is managing risks and opportunities related to environment, social and governance criteria। ठीक है, environmental criteria क्या है? How has a company performed as a steward of nature, nature के बेसिस पे उसने कितना अच्छा काम किया है। social criteria, कैसे वो अपने employees, suppliers, customers के साथ behave कर रहा है। and governance, कि कंपनी की लीडरशिप, ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल, शेयर होल्डर राइट्स पे उसका कैसा परफॉर्मेंस है। दिस इज व्हाट द ESG फ्रेमवर्क मींस। सेबी ने 2021 में न्यू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी लाए थे, विच इज अंडर द BRSR, विच इज योर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट।
नेक्स्ट यू हैव ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो हमने ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज पहले ही कवर कर रखा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू बी सेड हियर। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस। तो सेबी इसका मेंबर है, बस इतना याद रखो। ये भी हमने देखा था कि सारे जो भी वर्ल्ड के सिक्योरिटीज रेगुलेटर है उसको साथ लाने वाली एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। 3 बॉन्ड्स जो है, 3 बॉन्ड टाइप्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ब्लू बॉन्ड्स नाम से ही पता चल जाएगा किससे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लीन वाटर, वाटर रिसाइकलिंग, ओशन एनर्जी एक्सेट्रा। येलो बॉन्ड्स, ये भी नाम से पता हो जाएगा कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या है, ट्रांजिशन करना है हमें टू अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन बॉन्ड्स। इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो रिसेंटली पेट्रोल को 20% इथेनॉल से ब्लेंड करके रोल आउट किया गया था इन 11 स्टेट्स एंड यूटीज। अभी तक इंडिया में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था पेट्रोल के साथ, ठीक है, 10% इथेनॉल, बाकी 90% पेट्रोल हुआ करता था। बट अब गवर्नमेंट 2025 तक इसको डबल करने की बात सोच रही है। नाउ इन जून 2022 इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड द एवरेज ब्लेंडिंग रेट ऑफ 10% इथेनॉल इन पेट्रोल। नाउ हाउ डज द बायो इथेनॉल साइकिल वर्क? सबसे पहले देयर विल बी क्रॉप्स लाइक कॉर्न या शुगर केन, व्हाटएवर यू वांट। इसको फाइनली ग्राइंडेड फॉर्म में इसको लिया जाएगा, देन इट विल बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट शुगर्स। उसके बाद इट विल बी डिस्टिल्ड टू मेक इथेनॉल which will be used as an alternative fuel. अब वो फ्यूल में से जो CO2 emissions हुए again will be used by these crops to grow. So this is how कोई भी net zero emissions वाली चीज हो रही है bioethanol cycle में. Now ethanol blended petrol is a biofuel that is obtained from organic source like sugarcane, maize, wheat, है ना, तो plant based है, इसके लिए इसको renewable fuel माना जाता है। National policy on biofuels जो है it has envisaged कि एक इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% हो जाना चाहिए बायोफ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2030, लेकिन इसको अभी बढ़ा के 2025-26 तक कर दिया। इस टारगेट को 2030 के जगह इट हैज बीन डन 2025 टू 2026, सॉरी। सो दिस इज वन थिंग। नाउ मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल, तो रिसेंटली एक SB गंगाधर नाम की वेसल जो है, एक ओशनिक वेसल या कोई भी बेसिकली वाटर वेसल, उसको रन किया गया यूजिंग मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल MD15। कहां पे? गुवाहाटी, असम में, ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक। नाउ व्हाट इज इंडिया एनर्जी वीक? इट इज बेसिकली इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, उसके वजह से ये इवेंट कराया गया था। हु हैज होस्टेड इट? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिथेनॉल इकोनॉमी का क्या फायदा होगा? ब्लेंडिंग ऑफ 15% मिथेनॉल in gasoline can result in at least 15% reduction in the import of gasoline and crude oil। तो ये एक फायदा होगा। दूसरा, GHG emissions भी 20% रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो भी चीजें नीति आयोग ने एक रोड मैप जारी किया है ना, बहुत सारी M100, M15, M85 ऐसे करके इन लोगों ने 3-4 फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं। GIBA ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, तो GIBA वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन एनर्जी वीक। अगेन हमने देख लिया, उसमें भी बात यही कही गई है कि बायोफ्यूल जो है उसका डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट इंक्रीज किया जाए। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ BEE विच इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसके अंदर सीलिंग फैंस जो है दे हैव बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेबलिंग। मतलब थोड़े जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे मैंडेटरी होता है कि उन पे वो स्टार वाली लेबलिंग हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सो ये दिखाता है जितने ज्यादा स्टार्स है उतनी ज्यादा सेविंग्स होगी, है ना आपकी। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। इसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था। BEE के बारे में एज यू नो हमने पहले भी देखा हुआ है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब जो आपका स्टार रेटिंग है उसमें लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन में हाईएस्ट स्टार होगा। मतलब 5 स्टार है, मतलब वो बहुत ही लो एनर्जी कंज्यूम कर रही है कंपेयर टू अगर बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है तो 1 स्टार होगा, 2 स्टार होगा। कौन से अप्लायंसेस मैंडेटरी है याद करना थोड़ा मुश्किल है, अगर कर सकते हो तो कर लो। इसको याद करने का मेरा तरीका ये हुआ करता था, आई यूज्ड टू विजुअलाइज इट इन माय ओन होम, कि अगर मैं एंटर कर रहा हूं, इफ आई सी अ फ्रिज, इफ आई सी LED लैम्प, तो ये सब मैंडेटरी है। ऐसे करके इसको याद कर लो अपने घर को विजुअलाइज करते हुए। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने बहुत सारे चीजें देखी और मेजर्स लिया है टू चेक फील्ड लेवल irregularities in the organic farming certification. India ranks first in the number of organic farmers, तो याद रखना सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स इंडिया में। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज यू नो, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, हेल्दी सॉइल हो जाएगा, उससे इरोजन रिड्यूस होगा, क्लीनर वाटर मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी को स्टिमुलेट करेगा।
इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स विल रिड्यूस, देयर विल बी नो हेल्थ रिस्क, ज्यादा विटामिन मिनरल सब कुछ आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इंडिया में कैसे होता है? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसको कौन रन करता है? एपीडा, विच इज योर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये करता है। अब मुझे आप बताओगे एपीडा जो है कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। जैविक भारत फसाई का बेसिकली इनिशिएटिव है, so this is also for organic farming. नैनो यूरिया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने औंधला एंड फुलपुर इन यूपी वहां पे एक इफ्को का नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बेसिकली इनॉग्रेट किया था। यूरिया इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, तो यूरिया जो होता है इट इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड, इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द यूरिन एंड एनिमल वेस्ट। इंडिया 25% जो भी अपना यूरिया है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। देयर इज नो गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन नैनो यूरिया, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी आपको नहीं मिलती नैनो यूरिया पे। नैनो यूरिया क्या है? तो आपका नैनो फर्टिलाइजर है जो कंटेन करता है नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स को, ठीक है, उसको पानी में डिस्पर्स कर दिया जाता है। कौन इसको बना रहा है? तो इसको इफ्को जो है दैट इज सेलिंग इट। रेलेवेंस क्या है नैनो यूरिया का इंडिया में? तो इट कैन ओवरकम द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो नाइट्रोजन से एसोसिएटेड है। तो नॉर्मल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी आपकी 30 to 40% होती है, बट व्हेन इट कम्स टू नैनो यूरिया इट इज मोर देन 80%, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इकोनॉमिक कॉस्ट और एनवायरमेंटल कॉस्ट आई थिंक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो यू कैन गो थ्रू देम। देयर इज समथिंग कॉल्ड द नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट NDAP फर्टिलाइजर, तो अभी नैनो डैप जो है उसके प्रोडक्शन को बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इट हैज गिवन इट अ गो अहेड। तो नैनो डैप विल बी अ नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर विद नैनो पार्टिकल्स ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, दोनों इसमें होंगे। नाउ अभी जो है मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज डैप रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करी जाती है, ठीक है, तो इसको एक तरीके से दिस विल बी कर्टेल्ड या कर्ब्ड। मेन सोर्सेस कहां से? वेस्ट एशिया और जॉर्डन से ये आता है। 3 प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK सबसे 3 माइक्रो होती है, बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एक्वाकल्चर इन इंडिया, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है इंडिया। इट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इंडियाज जो श्रिम्प होता है दैट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट्स। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर भी है इंडिया। 75% ऑफ फिश प्रोडक्शन हमारा इनलैंड फिशरीज से, ये याद रखना, मरीन फिशरीज नहीं, ज्यादातर जो हमारा फिश का प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम इनलैंड फिशरी, मतलब जो इनलैंड एरियाज है वहां से। फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है इंडिया एंड 25% ऑफ फिश प्रोडक्शन इज मरीन फिशरीज। अभी जो प्रोग्राम्स यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं फॉर एक्वाकल्चर सेक्टर वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आई डोंट थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है इंडियन व्हाइट श्रिम्प का वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, टेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, उसका ये समिट है, तो दैट्स इट। SDG एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम, तो FAO एंड सीड जो है दे हैव लॉन्च द दिस एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो बेसिकली सीड क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। UNEP, UNDP एंड IUCN, दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सीड ग्लोबल पार्टनरशिप किसके 3 के बीच में? UNEP, UNDP एंड IUCN, ओके, सो रिमेंबर दिस। SDG एग्री फूड एक्सेलरेटर क्यों किया गया है? एग्री फूड सिस्टम स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए किया गया है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो बायो फर्टिलाइजर्स ये होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर उनको सॉइल में ऐड कर दो तो उनका जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो ये इंक्रीज कर देता है, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT दैट इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया ऑन द सतलज रिवर, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ कमिंग टू GLOFs, ग्लेशियल लेक्स एंड ग्लेशियल लेक्स आउटवर्ड्स फ्लड्स, तो यू मस्ट हैव सीन GLOF अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। बेसिकली जो भी ग्लेशियर्स होते हैं उनमें जो लेक्स होती है वो मेल्ट होते होते जो भी पानी आता है उसकी वजह से फट जाती है ना, क्योंकि बहुत सारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, अब वो लेक्स में पानी आ गया तो इट विल बेसिकली बहुत ज्यादा भर जाएगी एंड इट विल ओवरफ्लो, दैट इज कॉल्ड योर ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स।
तो एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट व्हाट आर ग्लेशियल लेक्स एंड आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसको देख लेते हैं। ग्लेशियल लेक्स आर लार्ज वाटर बॉडीज जो एक मेल्टिंग ग्लेशियर के आसपास हो, या राइट इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ या बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज बेसिकली सडन रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्लेशियल लेक में भरा पड़ा था। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो इट रिड्यूसेस द सैलिनिटी ऑफ द सरफेस लेयर एंड ऑल्टर्स द ओशन सर्कुलेशन। तो ओशन सर्कुलेशन पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हिमालयाज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जून 2013 में उत्तराखंड में चोराबारी ग्लेशियर जो है मेल्ट हुआ था, जिसकी वजह से देयर वाज इरप्शन इन द मंदाकिनी रिवर एंड अदर एरियाज। सो दिस इज अनदर थिंग। फैक्टर्स दैट ट्रिगर द GLOF, तो बेसिकली रैपिड स्लोप मूवमेंट इनटू द लेक, बहुत ज्यादा जल्दी रैपिड मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से। वाटर इनफ्लो, ग्लेशियर के मेल्ट होने से बहुत ज्यादा जल्दी पानी भर रहा है लेक में, तो दैट कुड हैपन ड्यू टू हेवी रेनफॉल या फिर स्नो मेल्ट। अर्थक्वेक आ गया, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई, उससे भी ये हो सकता है। डैम डिग्रेडेशन से भी हो सकता है। ब्लैक कार्बन जो है उसकी वजह से जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मास टूरिज्म और रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये कहाँ पे है, तो बेसिकली आपका डूम्सडे ग्लेशियर इसको माना जाता है एंड वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट के में पाया जाएगा। Now it contributes to 4% of global sea level rise. That is why it is important. Now Anatolian plate, ये टर्की में जो earthquake आया था उससे related है। तो if you see टर्की का मैप, जियोलॉजिकल मैप, तो एनाटोलिया प्लेट जो है उसके ऊपर टर्की है, इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है ना। ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है। अ फॉल्ट इज बेसिकली अरेबियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट जो है उसके बीच का ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, जहां पे दोनों की दोनों प्लेट्स मीट करती है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट जो है वो यूरेशियन और एनाटोलियन प्लेट के बीच में। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। नाउ क्या होता है, ये आपका एनाटोलियन प्लेट से कैसे ये हुआ, ठीक है, ये आपका अर्थक्वेक। तो द रीजन वेयर द अर्थक्वेक हैज स्ट्रक लाइज along the seismic fault line called the Anatolia tectonic block। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। Now there is something called the strike slip earthquakes। तो strike slip faults क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। They are the fractures in the earth's crust where rocks slide horizontally past each other। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि एक हाईवे है जहां से एक साइड से आप आ रहे हो, दूसरे साइड से दूसरी गाड़ी आ रही है। So this is kind of a strike slip fault, है ना, इस डायरेक्शन में ये चलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से स्लाइड करते हैं रॉक्स, तो ऐसे इसको विजुअलाइज करो। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में द ब्लॉक्स स्लाइड पास्ट ईच अदर लाइक कार्स पासिंग ईच अदर ऑन द रोड। एग्जांपल इसका कौन सा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है कैलिफोर्निया यूएसए में, वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक्स वो जो है वो अभी यहाँ पे हुआ आपके टर्की में। ये वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं वेयर ब्लॉक्स आर मूव्ड हॉरिजॉन्टली। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। अब टर्की का लोकेशन देख लेना एक बार मैप में, तो बल्गेरिया, ग्रीस ये इसके नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान ये इसके ईस्ट में आएंगे। सीरिया एंड इराक इसके साउथ में आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर पावर सेक्टर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इंटायरली स्किपेबल। फायर एड प्रोजेक्ट, तो ये 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया था, जिससे वाइल्ड फायर्स जो होती है उसका प्रेडिक्शन बेटर किया जाए यूजिंग AI। तो AI से इसको वाइल्ड फायर्स को प्रेडिक्ट करने का एक सिस्टम किया गया है। समुद्रयान मिशन, तो इट इज बेसिकली जैसे हम चंद्रयान भेज रहे हैं, राइट, या बेसिकली मैन्ड मिशन है जो कि एक सबमर्सिबल व्हीकल है, उसको पानी में नीचे भेजा जाएगा अलॉन्ग विथ 3 ह्यूमंस। 6000 मीटर्स तक इसको भेजा जाएगा और डीप ओशन एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। हु इज डूइंग दिस? दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। समुद्रयान के बाद इंडिया विल जॉइन द एलीट क्लब ऑफ सिलेक्टेड नेशंस लाइक यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना। तो इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, बट इट विल जॉइन अ वेरी सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज। नाउ ये डीप ओशन मिशन के अंदर किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, एज यू नो, मेजर कंपोनेंट्स क्या है डीप ओशन मिशन के? मैन्ड सबमर्सिबल टू कैरी 3 पीपल टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम होगा फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए भी ये होगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए समझने के लिए ऐसे समझो कि यू आर एक्सप्लोरिंग अ जंगल जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे स्पीशीज है, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। नाउ इट इज लाइक गोइंग इन दैट फॉरेस्ट फॉर अ ट्रेजर हंट, जहां पे आप वैल्यूएबल रिसोर्सेज निकालोगे
कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कौन सी मेडिसिन बन सकती है। अगर ऐसी चीज कोई कंपनी करती है, दैट इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो दे गो अराउंड लुकिंग इन दीज एरियाज या फिर इन दीज ओशंस कि कौन से डीप सी फ्लोरा एंड फौना है जो हमारे काम आ सकते हैं इकोनॉमिकली। ओके, दैट इज कॉल्ड योर डीप सी बायोडाइवर्सिटी। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होता है, तो कॉपर, निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, इनको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, छोटे मोटे मेटल्स। सो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, दीज आर पोटैटो शेप्ड राउंडेड एक्रीशंस विच आर मैंगनीज, निकल, इन सबके छोटे छोटे बहुत स्टोन जैसे नोड्यूल्स जो होते हैं उसको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, दिस इज नथिंग बट जो आपका पानी होता है, ठीक है, तो ठंडा पानी एंड डीप वाटर्स विच इज बेसिकली कोल्ड, वो आपका इक्वेटर वर्ड आता है, फ्रॉम पोल्स से इक्वेटर की तरफ ठंडा पानी डेप्थ पे आता है, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड, पोल वर्ड ट्रांसपोर्ट होता है आपका गर्म पानी विच इज नियर द सर्फेस। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है गर्म पानी सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऊपर के एरिया में, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये हमेशा चलता रहता है। दिस इज हाउ द होल ट्रांसफर ऑफ हीट सिस्टम वर्क्स, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन एंड हीट अमंग द ओशन बेसिन्स एंड बिटवीन ओशन एंड एटमोस्फेयर। तो यहां से ये पूरा ट्रांसफर ऑफ हीट का गेम चलता है। तो ये समझ आ गया होगा होपफुली। इक्वेटर की तरफ कौन सा पानी आ रहा है, जो ठंडा है और डीप नीचे की तरफ है पानी, है ना, क्योंकि ऊपर तो गर्म पानी होगा इक्वेटर पे। एंड सिमिलरली जो ऊपर का गर्म पानी है वो ट्रैवल होते हुए पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द GOC। हीट डोम क्या होता है, तो हीट डोम इज नथिंग बट अ हाई प्रेशर सर्कुलेशन इन द एटमोस्फियर व्हिच एक्ट्स लाइक अ डोम और अ कैप, ट्रैप्स हीट एट द सर्फेस एंड फेवर्स द हीट वेव फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो भी सपोज एक ऐसे हमने ऊपर कैप बना दी है ना, अब इसके ऊपर जो भी गर्म हवा है वो जा नहीं पा रही है, तो इट विल अगेन कम बैक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हीट डोम। तो एक डोम जैसा है जहां पे सारी हीट जो है उसको ट्रैप कर लेता है। नाउ हीट डोम्स आर बेसिकली टाइड टू अ पैटर्न ऑफ जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये एक फास्ट विंड्स होती है हाई इन एटमोस्फेयर दैट जनरली रन वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन इट, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है एंड ऐसे ये वेव के फॉर्म में होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वेव के फॉर्म में ये देखने को आपको मिल जाएगी। अब हीट डोम्स जो होते हैं, ये क्या होता है, जब ये जेट स्ट्रीम्स होती है, व्हेन दे मींडर, मतलब मींडरिंग का मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर जाने लग जाए, तब ये बहुत स्लो हो जाती है एंड दे बिकम स्टेशनरी एंड दिस रिजल्ट्स इन हीट डोम्स। अब क्या होगा, जो हॉट एयर होगी दैट विल राइज इन द एटमोस्फियर, बट जो डोम की लिड है, मतलब जो डोम ऊपर से बंद है, दैट विल कॉज द एयर टू सिंक, वो उसको एस्केप नहीं करने देगा, दैट इज व्हाई एयर सिंक होगी, इट विल कंप्रेस एंड दैट इज व्हाई इट विल बिकम वार्मर, जिससे जो टेम्परेचर है वो राइज होता जाएगा। नाउ इंपैक्ट क्या होगा हीट डोम का, इट विल अफेक्ट द सीजनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वाइल्ड फायर की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलेटेड इलनेसेस जैसे कि हीट स्ट्रोक और ये सब भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड हीट डोम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये हाई प्रेशर जो है इट इज पुशिंग द एयर डाउन, विच इज द आइडिया बिहाइंड द हीट डोम। Earth's inner core, this is part of your static geography, so I'm not going to cover it. इसमें कुछ एक और नया कोर इन लोगों ने डिस्कवर किया है, बट इट इज वेरी, बहुत ही नई न्यूज है, सो इट कैन नॉट बी बेसिकली, अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ होगा इस रिपोर्ट का, सो इट कैन नॉट बी सेट फॉर सर्टेनिटी। नेक्स्ट, अदर रिलेटेड न्यूज, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। प्लेसेस इन न्यूज, तो थोड़ी प्लेसेस इन न्यूज देख रहे थे, बाकी आई थिंक यू कैन सी इट ऑन योर ओन। तो शिंकुनला टनल जो है दैट हैज बीन बेसिकली कंस्ट्रक्टेड, कहाँ, हिमाचल की लाहौल वैली और लद्दाख की जास्कर वैली, इस दोनों को कनेक्ट करेगा। दिस इज द शिंकुनला टनल। देन यू हैव द सियोम रिवर, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्र की, और मॉलिंग नेशनल पार्क जो है उससे ये बेसिकली फ्लो करती है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ताल कावेरी, इट हैज इमर्ज्ड एज अ लोकेशन टू गेज द स्काई, बेसिकली स्टार्स देखने के लिए अच्छी एक लोकेशन ताल कावेरी कर्नाटक में। मुनरो थुरुत्तु आइलैंड, ये केरला में, इट इज बेसिकली सिंकिंग, दैट इज व्हाई ये न्यूज में, और क्यों सिंक कर रहा है, बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक रीजन से, ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन से। लाइज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अष्टमुडी लेक एंड द कल्लदा रिवर इन केरला। भारतपुरा रिवर, दिस इज बेसिकली केरला की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो भारतपुरा रिवर, इसको नीला भी बोला जाता है इन सेंट्रल केरला, एंड ये अन्नमलाई हिल से ओरिजिनेट होती है।
इंटरनेशनल में जो भी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक विक्टोरिया देख लेना, तंजानिया में है। लेक चैद, एज यू नो, लेक चैद कहाँ है? नॉर्वे, कैपिटल ऑस्लो है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल्स और मिनरल्स मिले हैं इसके सीवेड में। ताजिकिस्तान का कैपिटल इज दुशानबे। सो या लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। तो IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऐसी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, लाइफ लेसन्स। तो लाइफ, एज यू नो, PM मोदी ने इसको एक आइडिया दिया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो उससे रिगार्डिंग ये एक रिपोर्ट है। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की है। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉइल, कार्बन एंड ग्रासलैंड्स, FAO जो है ये इसका असेसमेंट कर रहा है। कार्बन हेल्ड विद इन द सॉइल दैट इज मेजरेबल, दैट इज योर SOC, सॉइल कार्बन। सॉइल कार्बन क्या है? जितना सॉइल के अंदर कार्बन जो है उसको हम सॉइल कार्बन बोलते हैं। अब ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सॉइल बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इसका फायदा रहता है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस। तो ये WMO का है, ग्लोबल सी लेवल राइज। WMO के बारे में यहाँ पे सब हमने आगे भी कवर किया है, पहले भी, तो वी विल सी दैट। लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो यायासो, इसको फर्स्ट हेरिटेज साइट बताया गया है आपके लद्दाख का। इट इज अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाएगी। ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए, विच इज ये बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा मानी हुई एक बर्ड है। तो इट इज ऑल्सो बर्ड विच हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर द बुद्धिस्ट्स। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड UNDP, और इसको GEF जो है वो फंड करता है। ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालयास के लिए बनाया गया है। ओके। साउथ अफ्रीका ने ट्रांसलोकेट कर दिए 12 चीताज टू इंडिया। इसमें से 1-2 की डेथ्स भी हो गई है। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है MP में, वहां पे इसको ट्रांसफर किया गया है। एराटा एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो लेट अस बिगिन द सेकंड पार्ट, द अपडेटेड PD65 पार्ट 2 ऑफ एनवायरनमेंट। सो हमने पार्ट 1 कर लिया है, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। 4.1 इज क्लाइमेट चेंज। इसमें ड्राफ्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में कहा गया है। अब बिकॉज इट इज इन द ड्राफ्ट स्टेज, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्राफ्ट स्टेज में है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने BEE, विच इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसके साथ ये स्कीम को लाया गया है। इसमें बस एक चीज अगर आपको ध्यान रखनी है तो ये रख लो कि रोल ऑफ CERC, विच इज द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो रेगुलेट करेगा सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी को इस कार्बन मार्केट में। जबकि जो BEE है वो एडमिनिस्टर करेगा कार्बन मार्केट को, एंड सेक्रेटेरिएट होगा ICMGB का। नाउ व्हाट इज ICMGB? दिस इज द ICMGB, इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड, जो गवर्नेंस देखेगा इंडियन कार्बन मार्केट का। दैट इज इट। दीज आर द 3 बॉडीज दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया होगा जो रजिस्ट्री के फॉर्म में मेंटेन करेगा। नाउ व्हाट इज BEE? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके अलावा इसकी जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है ECBC, है ना, विच इज द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जो मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स जो है उसको दे देता है ना, फॉर द न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स, वो सेट करता है आपका BEE। सेकंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड द PAT स्कीम, विच इज द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। सो ये BEE कंडक्ट करता है। नो द टर्म कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट इशू करती है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एजेंसी, विच बेसिकली मीन्स कि एक सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोस्फियर। दैट इज योर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। नाउ EU ने ही ऐसा एक कार्बन मार्केट का रिफॉर्म जो है अभी अडॉप्ट किया है। उसका सिर्फ नाम याद रख लो, फिट फॉर 55। उसमें 55% तक रिड्यूस करना है GHG एमिशंस को फ्रॉम 1990 लेवल्स, जिससे 2050 तक EU में नेट जीरो एमिशंस हो जाए। बस इतना ही याद रखना है। किसने फिट फॉर 55 इनिशिएटिव लॉन्च किया है? EU ने। क्या करता है फिट फॉर 55? 55% रिडक्शन करता है GHG एमिशंस में बाय 2030 फ्रॉम 1990 लेवल्स। तो सॉरी, आई मेंशन 2050, इट इज बाय 2030 हमको रिड्यूस करना है 55%। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस। इंडियाज रिस्पॉन्स टू अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो इंडिया ने क्यों कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया है? तो EU ने ऐसा कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लाया था। इंडिया का रीजन ये था कि इट इज अगेंस्ट द CBDR, विच इज योर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सारी कंट्रीज ने, अगर हम हिस्ट्री देखें कार्बन एमिशंस की, तो जो वेस्टर्न नेशंस है उनका जो कार्बन एमिशंस है वो बहुत ज्यादा रहा है। एंड आज की तारीख में जो हम इफेक्ट्स देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, दिस इज ड्यू टू द कार्बन एमिशंस इन 1901। उस टाइम पे जो कार्बन एमिशंस हो रहे थे 1901 वाले डेकेड में,
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडेज क्लाइमेट चेंज। तो उस टाइम पे जो कंट्रीज थी दे शुड बी हेल्ड लायबल फॉर इट, ऐसा इंडिया का मानना है। ठीक है, उनकी लायबिलिटी है कि उन लोगों को एक्चुअली बाकी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंशियल ट्रांसफर्स करने चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी भी है बिकॉज जो इंडियन गुड्स की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी यूरोप में, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट डिस्टॉर्शन हो सकता है, इकोनॉमिक रिस्क है ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसने लॉन्च किया है? WMO ने इसको लॉन्च किया है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज GGMI। इसके अंदर क्या है कंपोनेंट्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा GGMI के अलावा ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच एंड इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम IG3IS, ये भी इन्हीं का इनिशिएटिव है। WMO के बारे में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, हेडक्वार्टर्स का है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। 187 या 193 कंट्रीज अभी इसकी मेंबर है। रिपोर्ट्स के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट है, ये दोनों WMO निकालती है। प्रोग्राम्स कौन सी है? वर्ल्ड वेदर वॉच या ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, ये इसका एक प्रोग्राम है जहां पे एक सैटेलाइट्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है लैंड एंड सी साइट्स को। वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम है विच मॉनिटर्स द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि डिजाइन किया गया है रिसर्च के लिए फॉर ओजोन डिप्लीशन एंड अदर सच इश्यूज। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। कमिंग टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको किसने एस्टैब्लिश किया? 2010 में UNFCCC ने इसको एस्टैब्लिश किया था टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज रिड्यूस द GHG एमिशंस। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF इज बाय UNFCCC। इसको याद करने का तरीका है, इसके लास्ट में CF है तो इनके लास्ट में भी FCCC है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। अब इंडिया में जो NDAs है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एंड जो एक्सेस एक्रेडिटेड एंटिटीज है वो IDFC बैंक, येस बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया विल ज्वाइन द इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन फॉर सिविल एविएशन इन 2027। तो कॉर्सिया करके रूल्स है, ये कॉर्सिया करके एक कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम है इंटरनेशनल एविएशन की, उसको इंडिया ज्वाइन करेगा। ये किसका प्रोजेक्ट है? ICAO का, विच इज योर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये प्रोजेक्ट है। कॉर्सिया क्या है? बेसिकली एक हार्मोनाइज्ड वे है टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन, जिससे मार्केट डिस्टॉर्शन कम हो जाए। नाउ सेंटर हैज सेट 2030 एज द टारगेट टू बिकम द ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग। तो हमने ये देख लिया ऑलरेडी आर्टिकल NCOE GPS पे, विच इज इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड ग्रीन शिपिंग। ये हमने PT365 का जो एनवायरमेंट का लेक्चर है उसमें ऑलरेडी देख लिया है। C40 क्या है? इट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ नियरली 100 मेयर्स जो वर्ल्ड की लीडिंग सिटीज के आए हैं एक जगह पे टू कन्फ्रंट क्लाइमेट क्राइसिस। तो दिस इज इट। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ये न्यूयॉर्क में अभी इट वाज रिसेंटली हेल्ड, व्हिच वाज को-होस्टेड बाय नेदरलैंड्स एंड ताजिकिस्तान। ये सिर्फ सेकंड UN कॉन्फ्रेंस है जो वाटर को डेडिकेटेड है। पहली कहां हुई थी? तो मार देल प्लाटा इन अर्जेंटीना, वहां पे 1977 में हुई थी, उसके बाद अभी हुई है। SDG 6 अचीव करने के लिए ये बनाई गई है। एंड की आउटकम्स क्या है? एक न्यू वाटर एक्शन एजेंडा लेके आए हैं। तो बेसिकली जो भी वॉलंटरी कमिटमेंट्स है वो कलेक्टिव होगी, जिससे प्रोग्रेस जो है एक्सेलरेट हो जाए। इसमें इंडिया का $50 बिलियन का कमिटमेंट है, जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है हमारी जल जीवन मिशन, वो इसमें इंक्लूडेड होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देयर आर 2 इनिशिएटिव्स, मेकिंग राइट्स रियल इनिशिएटिव, मतलब जो राइट्स है उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और विमेन को, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज कर पाए अपने राइट्स को और भी बेटर वे में। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द वाटर फॉर विमेन फंड, तो विमेन के लिए वाटर एक्सेस जो है, एक्सेसिबिलिटी है, उसको इंक्रीज करने के लिए फंड बनाया गया है। वाटर एक्शन डिकेड जो है 2018 से 28, विच इज UNGA ने इसको डिक्लेयर किया है 2018 से 2028। W12+ ब्लूप्रिंट इज अ यूनेस्को प्लेटफॉर्म विच होस्ट सिटी प्रोफाइल्स। W12+ में सिटीज जो है वो कैसे अपने वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस से दे कैन बेटर हैंडल इट, उसके लिए यूनेस्को ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है W12+। UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है? यूनेस्को करता है ऑन द बिहाफ ऑफ UN वाटर। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसकी की फाइंडिंग में क्या पता चला कि SDG 6 के प्रति जो टारगेट के प्रति जो प्रोग्रेस है हमारी, वो सारी बहुत ऑफ ट्रैक चल रही है। एंड 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन कंट्रीज विथ हाई और क्रिटिकल वाटर स्ट्रेस। ग्राउंड वाटर पे एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट ग्राउंड वाटर के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। इंडिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का सिनेरियो क्या है 2022 में? तो जो 67% ऑफ ग्राउंड वाटर है वो सेफ कैटेगरी में आता है,
इसका मतलब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज लेस देन 70% इन दीज एरियाज, ठीक है। सेमी क्रिटिकल में इट इज 70 to 90%, क्रिटिकल में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिटवीन 90 to 100%। इंडिया में स्टेट्स विद हाईएस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन परसेंटेज कौन से? तो पंजाब, एज यू मस्ट बी वेल अवेयर, एंड सेकंड इज राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, ये सब भी आ जाता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, इथिलीन ऑक्साइड क्या है? बस इतना याद रख लो, पेस्टिसाइड रेसिड्यू है जो कि एंटी फ्रीज, कोई भी चीज को फ्रीज ना होने देने के लिए जो केमिकल होता है उसके अंदर इथिलीन ऑक्साइड यूज होता है, ठीक है, और पेस्टिसाइड जैसे भी यूज होता है। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होता है? तो पाइरीन जो है इट बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लास ऑफ केमिकल्स है जो नेचुरली अकर करते हैं आपके कोल, क्रूड ऑयल और गैसोलीन में, ठीक है। बट ये एनवायरमेंट में, सॉइल, वाटर और इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। लिक्विड ट्री या लिक्विड 3, ये क्या है? तो बेलग्रेड सर्बिया में एक लिक्विड ट्री जो है बनाया गया है। ये क्या है? एक अर्बन फोटो बायोरिएक्टर है। इसकी आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए एक ट्री के शेप में चीज बनाई गई है। इट कंटेन्स वाटर एंड माइक्रो एल्गे टू रिड्यूस जीएचजी एमिशंस। जीएचजी एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा एंड प्योर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा यूजिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये ट्रीज से भी ज्यादा एफिशिएंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। हमको लग सकता है ये स्टेटमेंट अगर प्रीलिम्स में आ गया कि ट्रीज से ज्यादा एफिशिएंट तो कैसे होगा, लेकिन नहीं, ये ट्रीज से भी ज्यादा एफिशिएंट है आपका लिक्विड ट्री। तो इसको याद रख लेना कि इट इज मोर एफिशिएंट देन ट्री। प्लास्टिक रॉक्स, ट्रिनिडेड आइलैंड इन ब्राजील, यहां पे प्लास्टिक मिला है रॉक्स के अंदर जिसको बोला गया है प्लास्टिक ग्रोमेट्स, ठीक है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेडिमेंटरी ग्रैन्यूल्स एज वेल एज अदर डेब्री हेल्ड टुगेदर बाय प्लास्टिक। तो ऐसे रॉक्स मिले। दिस शोज के ह्यूमन ने जो पोल्यूशन है, ह्यूमन इंड्यूस्ड पोल्यूशन या एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, दैट हैज रीच्ड इट्स जेनिथ। इट इज रीचिंग द अर्थ्स जियोलॉजिकल साइकिल्स आल्सो नाउ। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। कैल्शियम कार्बाइड, तो ये आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स है। जो हम मैंगो खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, उसके अंदर ये बहुत बार आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड लगा हुआ। अब कैल्शियम कार्बाइड का यूज है वो प्रोहिबिटेड है अंडर द फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड। सो या दैट्स दैट। सोडियम साइनाइड क्या है? तो एक व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड या पाउडर है जो रिलीज करता है हाइड्रोजन साइनाइड गैस। एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है ये कहां यूज होता है? तो गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में सोडियम साइनाइड का यूज होता है। तो याद रखना सोडियम साइनाइड का यूज कहां है? गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, इंसेक्टिसाइड बनाने में, डाइज या पिगमेंट्स बनाने में और बल्क ड्रग्स बनाने में। दिस इज इट। नाइट्रेट रेडिकल्स क्या होते हैं? तो ऐसे रेडिकल्स जो इंक्रीज करते हैं द अमाउंट ऑफ डेडली ओजोन या फिर PM2.5 इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रेट रेडिकल, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स बाउंड टू अ नाइट्रोजन एटम। इट अकर्स प्राइमरीली इन द नाइट टाइम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वहां पे ये देखने को मिलता है यूजुअली। ट्रयाग प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज। तो इस रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है या सेंटर है जो इन सारी रिवर्स को एक तरीके से मॉनिटर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये एफर्ट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट होने पे इसको लॉन्च किया गया है। टाइगर्स के बारे में आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, इट्स अ स्मॉल वीडियो व्हिच यू कैन सी। उसमें मैंने टाइगर्स को पूरी तरह से कवर किया है, 360 डिग्री एनालिसिस एंड ऑल्सो ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स ऑफ कंप्लीशन। उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, दैट इज कवर्ड बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। सो बस इसमें ये देख लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 के अंदर ये आता है। NTCA जो होगी वो IBCA की इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगी। सो दिस इज इट। नाउ IBCA was first proposed by India at an international grouping against the poaching and illegal wildlife trade। तो जो भी पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है आपके टाइगर्स में, उसको रोकने के लिए इंडिया ने इसको प्रपोज किया था। इसमें 7 मेजर बिग कैट्स विच इंक्लूड टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, सबको इसमें प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो 97 जो रेंज कंट्रीज है वो इसके अंदर आएगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ टाइगर के लिए, दिस इज फॉर ऑल बिग कैट्स। तो 7 बिग कैट्स इसके अंदर आ जाती है। नाउ सबसे खास बात है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट 5 बिग कैट्स इन द वाइल्ड। सिर्फ जो प्यूमा और जैगुआर है उसको हटा दो, उसके अलावा सारे के सारी जो कैट्स है बिग कैट्स वो हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। NTCA के बारे में, इट इज अंडर WPA, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, WPA एक्ट के अंदर बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है।
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है वो भी एनटीसीए कंडक्ट करवाता है। टाइप ऑफ बिग कैट्स एंड द लोकेशंस, लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, कुगार एंड स्नो लेपर्ड, ये सब इसके टाइप्स ऑफ बिग कैट्स हैं। आईबीसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो जनरल असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ये इसमें 3 आपको देखने को मिलेंगी बॉडीज। बाकी सारी चीजें आई हैव कवर्ड इन द टाइगर वाला लेक्चर, आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द वीडियो। सो की फाइंडिंग क्या है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 5th रिपोर्ट की, तो नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज 3167 इन 2022, तो अभी 3000 के अराउंड टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय 200 फ्रॉम 2018 टू 2022। हाईएस्ट नंबर आपको मिल जाएंगे सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड्स एंड ईस्टर्न घाट्स के अंदर। ओके, टाइगर पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड इन द वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में डिक्लाइन हुई है। एंड पेरियार टाइगर रिजर्व केरला जो है सबसे बेस्ट मेंटेन्ड है सारे टाइगर रिजर्व्स में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो एक गज उत्सव, गज का मतलब हिंदी में इज एलिफेंट, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी बेसिकली इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। दिस हैज मार्क्ड द 30th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो 50 इयर्स आपके प्रोजेक्ट टाइगर के हो गए, 30 इयर्स आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट के हो गए। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसके लॉन्च किया था 1992 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 के अंदर आ जाता है। सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इंडिया इज नाउ होम टू दी मोर देन 60% ऑफ ऑल वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। एज पर द एलिफेंट सेंसस 2017 इंडिया हैज 29,000 एलिफेंट्स। कर्नाटक में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स है, उसके बाद असम में, उसके बाद केरला में। हर 5 साल में ये सेंसस किया जाता है। डिफरेंस क्या है बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट, यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये IUCN स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट इज एंडेंजर्ड, जबकि सवाना में इट इज एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइज, हमारे जो एशियन एलिफेंट है वो स्मॉल होता है, वहां वाले लार्ज होते हैं। हमारे वालों के ईयर स्मॉल होते हैं, वहां वालों के बड़े ईयर्स होते हैं। स्किन जो होती है हमारे वालों की स्मूथ होती है, वहां पे रिंकल्ड होती है। फोरहेड जो है हमारे यहाँ पे ट्विन डोम्ड फोरहेड होता है, जबकि वहां पे सिंगल डोम का शेप होता है। टस्क्स में यहाँ पे सिर्फ थोड़े से एशियन एलिफेंट्स के टस्क होते हैं, जबकि फीमेल में तो टस्क मिलते ही नहीं है, जबकि वहां पे बोथ मेल एंड फीमेल हैव द टस्क्स। अदर कंजर्वेटिव मेजर्स क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था along with some state forest departments. नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, तो गज यात्रा इज सच अ कैंपेन जो NGO वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसने और हाथी मेरे साथी ने मिलकर लॉन्च किया है। तो दी हाथी मेरे साथी बेसिकली अनदर इनिशिएटिव। सो या नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्यों? क्योंकि इसका काफी सोशल रिलीजियस हमारे कंट्री में इसका काफी सिग्निफिकेंस है सोशल रिलीजियस। रिहैब, बेसिकली रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये KVIC जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने ये इनिशिएटिव रन या स्टार्ट किया था। माइक साइट्स, तो 10 माइक साइट्स हैं इंडिया में, तो आई हैव कवर्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल, तो ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान जो है अभी बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इट इज बेसिकली अ वे टू रिकंसाइल जो आपके डेवलपमेंट प्रोसेसेस है एंड आपके एग्रीकल्चर और जो भी चीजें हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको एक तरीके से कंजर्वेशन के लिए किया गया है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इसको किया गया है। इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपका एग्रीकल्चर, आपका इकोसिस्टम, आपका कल्चरल हेरिटेज और आपके रूरल लाइवलीहुड्स, इन सबको साथ में कंजर्व करने के लिए ये इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट अप्रोच अपनाया जाता है। अबाउट योर पन्ना टाइगर रिजर्व, तो ये आपके विंध्यन हिल्स में मिल जाएगी, ठीक है, जहां पे आपका डेक्कन पेनिनसुला स्टार्ट होता है, आपका अपर गैंजेटिक प्लेन खत्म होता है, और आपका सेमी एरिड गुजरात जो राजपुताना एरिया है वो तीनों के एक जगह पे जहां कन्वर्ज करता है उसके कॉन्फ्लुएंस पे आपको ये पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। रिवर जो पास होती है दैट इज केन रिवर पासेस थ्रू इट। इट इज ऑल्सो द थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द यूनेस्को's WBNR which is the World Network for Biosphere Reserve after Panchmari and Amarkantak from MP. अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया है अरावली में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। क्या है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो आपने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। हमने जब PT65 कवर करी थी एनवायरनमेंट की, उसमें वी हैड सीन द अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम। कहां पे था वो? साहेल रीजन में था। साहेल रीजन जो है एज यू कैन सी इन द मैप
वहां पे ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव रन किया गया था। ये क्या है, ग्रीन कॉरिडोर्स जो है 5 किलोमीटर बफर एरिया में अराउंड द अरावली हिल इन द 4 स्टेट्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उसको कवर करेगा। वहां पे आप ग्रीन कॉरिडोर बनाओगे 5 किलोमीटर बफर एरिया में। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। इट विल इन्वॉल्व प्लांटिंग नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड हर्ब्स, जो भी ट्रीज एंड श्रब्स है वो इसमें करे जाएंगे प्लांट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के, तो इकोलॉजिकल हेल्थ जो है अरावली की, इसको बेटर करना है। आपका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो हो रहा है थार डेजर्ट का, थार डेजर्ट एक्सपैंड हुए जा रहा है, उसको रोकना है। दैट इज अनदर इशू। नामदाफा नेशनल पार्क कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे रिसेंटली एक टाइगर देखा गया था। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। तो ये नामदाफा इट लाइज बिटवीन द बॉर्डर एंड इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दाफला बम या दाफा बम, वहां से। एंड ये नोआ दिहिंग रिवर, इसको तो आपने सुना होगा, वहां पे जाके इसको मिलती है। ये कैचमेंट एरिया में आती है ऑफ नोआ दिहिंग रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्रह्मपुत्रा। देन यू हैव ओरांग नेशनल पार्क, ये कहां पे है, आपके असम में है। तो यू शुड नो के वेस्ट टू ईस्ट जब जाते हैं तो कौन से नेशनल पार्क असम के हैं। सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट द मोंक थिंग। तो मोंक जो है दैट इज द एक्रोनिम फॉर वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो इट इज लोकेटेड इन असम। मिनी काजीरंगा बोला जाता है ओरांग को। तो काजीरंगा का एक और नाम, सॉरी, मिनी काजीरंगा is what Orang is called. Brahmaputra river passes through it. It is also an important bird area by BirdLife International. बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है, गुजरात में। क्यों न्यूज में है, बिकॉज उसको सेकेंड होम कंसिडर किया जा रहा है, उसको शिफ्ट करने की बात करी जा रही है एशियाटिक लायंस के लिए। तो एशियाटिक लायंस को आप शिफ्ट कर दोगे बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। दिस इज इन लाइन विद द रिपोर्ट लायन एट 2047 जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो कितना दूर है ये, 100 किलोमीटर दूर है गिर नेशनल पार्क से। इट इज होम टू सम कम्युनिटीज लाइक मालधारी, भरवाड़ एंड रबारी एंड गढ़वी कम्युनिटीज। सो दिस इज अनदर आइडिया। नाउ एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, केरला में है। इट हैज गॉट इट्स फर्स्ट फर्नेरियम। फर्नेरियम क्या होता है, तो जो फर्न्स होती है ना, जो फर्न्स, जो एक तरीके से फर्न होती है। नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन फर्न्स, यू कैन बेसिकली गूगल व्हाट इज अ फर्न। तो उसका एक एक्वेरियम जैसा, जैसे एक्वेरियम में बेसिकली आपको सारी फिशेस मिलती है, वैसे फर्नेरियम में आपको सारे फर्न्स मिलेंगे। नाउ इट इज लोकेटेड नियर इडुक्की, केरला। हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुड़ी, ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुला की भी हाईएस्ट पीक है, वो आपको एराविकुलम नेशनल पार्क में मिल जाएगी। यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप क्या है, ग्रासलैंड, श्रबलैंड, शोला फॉरेस्ट, ये सब मिल जाएगा। नीलगिरी थार जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इन केरला, तो वहां पे अभी आप बहुत रोज न्यूज में सुन रहे होंगे हिंदू में, अरिकोम्पन करके एक वाइल्ड एलिफेंट था जो बहुत घूम रहा था, उसके ट्रांसलोकेशन का ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट ने। तो इट इज लोकेटेड इन केरला। नेलियमपट्टी हिल्स ऑफ केरला एंड अनामलई रेंज, उसके बीच में ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आ जाता है। इट रिसीव द एक्रेडिटेशन फॉर ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स विच इज द कैट्स स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए भी इसको एक्रेडिटेड किया गया है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन एमपी, दिस हैज बीन बेसिकली डेवलप्ड एज अ सेकंड होम फॉर चीताज, ऐसा एमपी के सीएम ने कहा है। तो इसको ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जो राजस्थान बॉर्डर है वहां पे नॉर्थ वेस्ट एमपी में ये सिचुएटेड है। कौन सी रिवर इसके थ्रू पास होती है, तो रिवर चंबल। तंसा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट इसको आप देख सकते हो, व्हाट यू वांट टू नो। ये थाने में है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स पे। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, महानदी रिवर इसके थ्रू जाती है। इंडियन वुल्फ, तो गुजरात इज सेट टू शिफ्ट 10 इंडियन ग्रे वुल्व्स फ्रॉम अ कंजर्वेशन ब्रीडिंग एरिया टू फॉरेस्टेड एरियाज। तो ये कहाँ इंडियन वुल्फ मिलता है, तो देख लो, यहाँ पे है आपका, थोड़ा सेंट्रल इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में है ना, हैदराबाद तेलंगाना रीजन में है, एंड इवन एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे झारखंड में पाया जाता है। सब स्पीशीज है ग्रे वुल्फ की, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर ये आ जाता है। बुगुन लियो चिल्ला, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये अरुणाचल प्रदेश में इसका एक उत्सव या एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। तो वेयर इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर दिस। अगेन इट इज इन शेड्यूल 1। ये ऐसा फ्लावर है जो सिलेक्ट पॉकेट्स में पाया जाता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के। तो इट वाज द, सॉरी, इट इज द बर्ड, आई थिंक, या इट्स द फर्स्ट बर्ड डिस्कवर्ड सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। पिग्मी हॉग, सो पिग्मी हॉग क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ रेयर वाइल्ड पिग है, जो सबसे छोटा वाइल्ड पिग है, ये पिग्मी हॉग है। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स
दैट बिल्ड इट्स ओन होम या नेस्ट विद अ रूफ, तो ऐसा बनाता है। सारस क्रेन, इट हैज बीन इन न्यूज बिकॉज यूपी में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने एक कंजर्वेशन फार्मर था जो बेसिकली कंजर्वेशनिस्ट भी था, उसको नोटिस इशू कर दिया था बिकॉज एक सारस क्रेन यूज्ड टू कम बैक टू हिम बिकॉज ही टुक केयर ऑफ देम फॉर ऑफ दैट सारस क्रेन इन पर्टिकुलर। तो इंडिया के जो लॉज है उसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नो पर्सन इज अलाउड टू एक्वायर और कीप इन पोजेशन एनी वाइल्ड लाइफ विच इज अ स्टेट प्रॉपर्टी। तो सारस क्रेन को लेके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी पर्सन कैन नॉट बेसिकली कीप दैट बर्ड इन पोजेशन, इसके लिए उनको नोटिस ये सेंड किया गया था। शेड्यूल 1 के अंदर भी आता है। नाउ सारस क्रेन के बारे में व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द वर्ल्ड, इट इज फाउंड मेनली इन द पेयर्स, ठीक है, 3 और 4 या फिर साथ में मिलते हैं या फिर 3-4 के रूप में मिलते हैं। दे मेट फॉर लाइफ विद अ सिंगल पार्टनर, ओमनिवरस होते हैं ये लोग, एंड हैबिटेट जो होता है इनका शैलो वेटलैंड्स या फिर क्रॉप्ड एग्रीकल्चर एरियाज में देखने को मिल जाएंगे। 3 पॉपुलेशन इसकी आपको मिलेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। कमिंग टू लॉन्ग टेल डक्स, वुलार लेक जो है रामसर साइट, वहां पे लॉन्ग टेल डक स्पीशीज हैव बीन स्पॉटेड इन कश्मीर, सो दिस इज व्हाई द न्यूज इज इन, यू नो, दीज स्पीशीज आर इन न्यूज। विलायती कीकड़ या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, नाउ इस पे भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो विलायती कीकड़ क्या होता है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है जो ब्रिटिश लेके आए थे इंडिया में एज अ डेकोरेटिव स्पीशीज। आया था ये वैसे मेक्सिको से, है ना, इसको विलायती बबूल भी बोला जाता है। तो अभी बेसिकली सेंट्रल रिज जो है दिल्ली में, वहां से ये विलायती कीकड़ को हटाने की बात कही जा रही है बिकॉज इट इज इन्वेजिव एंड वहां पे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती है। सो दिस इज इट। PPVFR, तो बेसिकली योर प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। तो जो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको एक नोटिफाई कर दिया एज अ सेंटर फॉर PPVFR, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। अब PPVFR जो है आपको एज यू नो थोड़ा सीड और न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कोलकाता हैज बिकम द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी टू प्रिपेयर अ डिटेल रजिस्टर फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो पहला ऐसा बन गया है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया गया है। सो दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। बटरफ्लाई इको पार्क त्रिपुरा में बनाया गया है, बटरफ्लाई इको पार्क। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पे, त्रिपुरा में। तो इसको याद रखने का तरीका यह था TRI, दोनों में TRI आता है, त्रिपुरा तृष्णा। सो दैट इज हाउ आई रिमेंबर्ड इट। होप स्पॉट्स क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इसको अभी न्यू होप स्पॉट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को। होप स्पॉट क्या होता है, तो IUCN के हिसाब से होप स्पॉट वो एरिया है ऑफ एन ओशन दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट्स। तो दिस इज वाई इसको होप स्पॉट बोला जाता है। तो ओशन में जो एरिया है जहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन की नीड है, तो दिस इज इट। दिस इज पार्ट ऑफ द मिशन ब्लू ऑफ IUCN, so that is it. So low temperature thermal desalination plants. Now NIOT जो है उसने low temperature thermal desalination plants की बात कही है। Now what is a desalination plant? Low temperature thermal desalination plant का मतलब क्या है? तो imagine करो you have a glass of salt water and आपको उसमें से salt निकालना है जिससे आप उसको you can make it potable या drinkable. How will you do it? One way to do it is through desalination. मतलब आप उसमें से जो salt है उसको हटा दो, दैट इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। अब यूजुअली जो डीसैलिनेशन के प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हीट लगती है या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, उसको सेपरेट करने को, सॉल्ट को और पानी को। जैसे हम एक वेसल ले, ठीक है, एक बर्तन ले जिसके अंदर वी पुट वाटर एंड सॉल्ट, उसके बाद हम उसको हीट करते रहे, इतना ज्यादा हीट कर दे कि जो सॉल्ट है सिर्फ वो बच जाए और सारा पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाए। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन के थ्रू डीसैलिनेशन। बट एज वी सॉ, उसको आप गैस पे रखोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड द लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें लो अमाउंट ऑफ हीट ली जाती है जिससे सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फायदा क्या है लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट का, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। जो आपका नॉर्मल डीसैलिनेशन मेथड होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है, यहां पे कम एनर्जी में इसको बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट या लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट से क्या होगा कि इट मींस दैट इट कैन बी पावर्ड फ्रॉम वेस्ट हीट। जो बाकी कोई इंडस्ट्री है आसपास, उसमें से जो हीट निकल रही है उसको आप यूज कर सकते हो इस इस प्रोसेस को पावर करने के लिए।
सोलर एनर्जी या फिर वेस्ट हीट से इसको यूज किया जा सकता है। लो टेम्परेचर क्यों बोला जाता है? बिकॉज it is not as high, the temperature used here, it is not as high as other thermal desalination methods. So this is why it is called low temperature thermal desalination plants. अब NIOT ने इसको कहां सेटअप किया है? तो लक्षद्वीप में इसे सेटअप किया गया है। ओके, तो इट इज अ ग्रीन सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट। विल सी व्हाट दिस मींस। ओके, पहले देख लेते हैं NIOT के बारे में थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। इट इज ऑल्सो डीप ओशन मिशन जो है यही डेवलप कर रहे हैं। अब इसकी खास बात जैसे हमने ऊपर देखा सेल्फ पावर्ड, इसका मतलब इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट विच विल सप्लाई पावर टू द प्लांट एज वेल एज कन्वर्ट सी वाटर टू पोर्टेबल वाटर। मतलब पावर भी जनरेट करेगा जो इस प्लांट को रन करने के काम आएगा। सेकंड, सी वाटर को पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करेगा। अभी जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है वो डीजल जनरेटर पे चलते हैं, तो डीजल से चलते हैं, विच मींस एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। ठीक है, बट अब इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक प्रोसेस है जहां पे वार्म सरफेस सी वाटर जो है उसको इवेपोरेट किया जाएगा लो प्रेशर पे, एंड वेपर इज कंडेंस्ड। एक वेपर को जो है उसको कंडेंस करके एक जगह कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो वो कोल्ड डीप सी वाटर के साथ कंडेंस कर दिया जाएगा। बाकी जो पानी होगा उसको फिर रिलीज कर दिया जाएगा, एंड कंडेंस्ड जो पानी है उसको पी सकते हो आप, दैट इज ड्रिंकेबल वाटर। बेनिफिट क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर एंड दस पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आर मिनिमल। तो पोल्यूशन प्रॉब्लम्स मिनिमल हो जाती है क्योंकि कोई प्री ट्रीटमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता आपके सी वाटर का। IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्या है? होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनी रत्ना CPSE है जो फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। इट इज रजिस्टर्ड एज एन NBFC विद द RBI। नेक्स्ट, आपकी इंटरनेशनल डे फॉर जीरो वेस्ट, ये एक मनाया गया था। इसके बारे में यू कैन रीड इफ यू वांट टू, आई डोंट थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बट UNGA ने इसको रेजोल्यूशन जैसे स्टार्ट किया था। कमिंग टू हीट वेव अलर्ट, तो एज यू नो गर्मी इंडिया में बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे हीट वेव अलर्ट्स हर दिन आए दिन, यू नो IMD जो है इट इज गिविंग दीज हीट वेव अलर्ट्स। हीट वेव क्या होता है? इट इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी एक्सपोज हो जाएगी तो इट कुड ऑल्सो टर्न फेटल फॉर अस। रीजंस क्या है? तो प्रेवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, क्लाउडलेस स्काई एंड एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस। दिस इज व्हाई हीट वेव इज अकरिंग। IMD का क्राइटेरिया क्या है हीट वेव्स को आइडेंटिफाई करने का? तो अगर आपका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इट रीचेस 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन एरियाज एंड 30 डिग्री सेल्सियस इन हिली एरियाज, तो उसको हीट वेव माना जाएगा। अब व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो हीट वेव कब मानी जाएगी? जब इसका डिपार्चर हो फ्रॉम 5 to 6 डिग्रीज। सिवियर हीट वेव कब होगी? जब 7 डिग्रीज या मोर है। ठीक है, नाउ व्हेन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तो हीट वेव कब मानी जाएगी? 4 to 5 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर हो गया, या फिर सिवियर हीट वेव जब 6 डिग्री डिपार्चर हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री कम कर दो तब आपका माना जाएगा। नाउ व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 डिग्रीज और मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल यू नो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, तब उसको हीट वेव माना जाएगा। तो अगर 45 डिग्री के ऊपर चला गया तो उसको तो माना ही जाएगा कि हीट वेव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, साउथ अटलांटिक एनॉमली, आई थिंक ये आपने पहले हमने कवर किया हुआ है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही इज द हेड ऑफ इट। ठीक है, ही इज द चेयरमैन। क्या करती है इनकॉइस? एस्टैब्लिश करती है अर्ली वार्निंग सिस्टम को। सो दैट इज इट। गाया हाइपोथेसिस, मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के पूछा था व्हाट इज गाया हाइपोथेसिस, हियर इज द आंसर। ऑल माइक्रो, इट इज बेसिकली जेम्स लवलॉक ने एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थियोरी दी थी, who recently passed away, that is why it has been in news. It is basically a theory that all organisms, है ना, and their inorganic surroundings on earth, they are closely integrated to form a single and self-regulating complex system. मतलब self regulating है, इसमें आप और मैं जो भी organisms है हम dependent है सराउंडिंग्स पे, एंड एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारा जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के फॉर्म में देखने को मिलता है। प्लेसेस इन न्यूज इन इंडिया, जोजिला टनल कश्मीर वैली और लद्दाख को कनेक्ट करेगा। हिंदौन रिवर इज बेसिकली आपका रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी। शिप्रा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इंदौर में लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जो है इनॉग्रेट किया गया है।
सांची इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर आई थिंक सिटी और समथिंग, आई डोंट नो क्या न्यूज का कंटेक्स्ट है, बट आई जस्ट मेंशन्ड इट हियर. देन यू हैव इक्वेडोर विच इज बेसिकली मैग्नीट्यूड 6.8 अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिला था. मेकोंग रिवर में इट एंटर्ड इट्स 4th ईयर ऑफ ड्रॉट. इंडोनेशिया ईस्ट कलिमांतान, इन लोगों ने अपना जो कैपिटल है जकार्ता से ईस्ट कलिमांतान शिफ्ट कर दिया है. दैट इज व्हाई इट वाज द न्यूज. चिले में दे हैव बेसिकली गॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे क्लाइमेट इमरजेंसी और एनवायरमेंटल इमरजेंसी को भी ध्यान में रखा गया है. नेक्स्ट, CO2 एमिशंस इन 2022 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. दूसरी रिपोर्ट इन IEA's न्यू सीरीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक. ठीक है, स्टॉकटेक का मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स है उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉकटेक. ठीक है. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक कौन रिपोर्ट रिलीज कर रहा है? IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ग्लोबल डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव रिलीज करता है. स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इट इज बाय IQ एयर करके एक कंपनी है स्विस, उसने रिलीज किया है. इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने रिलीज किया है. एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने रिलीज किया है. उसमें देखा गया एनुअल रेनफॉल हैज इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू 2021 इन 2022. स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज करता है, जो BEE अलॉन्ग विथ AEEE रिलीज करता है. लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इसरो रिलीज करता है. उसमें पाया गया है इंडिया इज अमंग द टॉप 4 कंट्रीज विथ हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क. रेनफॉल वेरिएबिलिटी की भी प्रॉब्लम है विच इज सीन एज द बिगेस्ट कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन इंडिया, with Himalayas and the Western Ghats remaining highly vulnerable. Number of districts with highest number of landslide exposure is your Arunachal Pradesh. अब इंडिया में कहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स का खतरा है? तो इट इज नॉर्थ ईस्ट एंड देन इट इज नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज. उसके बाद आपका वेस्टर्न घाट्स आता है. तो वेस्टर्न घाट्स सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज है. ठीक है. सो दिस इज इट. अपडेट्स में ये है सोलर वेस्ट ट्रीटमेंट के रूल्स आए हैं. जो भी सोलर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ई वेस्ट मान के ट्रीट किया जाएगा. तो याद रखना सोलर वेस्ट हैज बीन ट्रीटेड अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, तो UN हाई सीज ट्रीटी है उसको अडॉप्ट किया गया है. तो जो भी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो एरियाज है, ठीक है, तो उसमें मरीन बायोडाइवर्सिटी बनी रहे उसके लिए ये बनाया गया है. तो इट इज अडॉप्टेड अंडर द UN क्लॉज विच इज योर UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी. लीगली बाइंडिंग है, तो जी हाँ, इसको लीगली बाइंडिंग रखा गया है. It will only enter into force once 60 countries have ratified it. इसको कहा जा रहा है ये पेरिस अग्रीमेंट है फॉर द ओशन. तो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि पेरिस अग्रीमेंट जितना सिग्निफिकेंस है फॉर द ओशन एंड इट्स इकोलॉजी. हाई एम्बिशन कोएलिशन वी हैव ऑलरेडी सीन. ये क्या था? तो बेसिकली आपका ब्रिटेन, फ्रांस एंड वन मोर कंट्री, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, बट उन तीनों ने बेसिकली, आई थिंक इट वाज कोस्टारिका, योर फ्रांस एंड ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलके हाई एम्बिशन कोएलिशन बनाया था जो कि इस ट्रीटी के अडॉप्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. नाउ क्या इंपॉर्टेंस है हाई सीज का? तो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एरिया हाई सी एरिया है. ठीक है. होम टू अराउंड 2.7 लाख स्पीशीज. इट प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो हम लोग लिविंग बीइंग्स ब्रीथ करते हैं. इट सोक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन सिंक एंड सी फूड भी प्रोवाइड करता है. UN क्लॉज जो है, as you know, 1994 में it came into force. India is a member of it. It established the International Court of the Law of Sea. तो ये dispute resolution के भी काम आता है. Now जो high seas treaty है draft stage में, तो but we will see only the major principles. तो polluter pays principle है. Traditional knowledge जो होगी indigenous people की, उसको भी इसमें ध्यान रखा जाएगा. EIAs environmental impact assessment, उसका भी ध्यान रखा जाएगा. Fair and equitable sharing of benefits जो है उसको भी देखा जाएगा. Coming to consent of the indigenous community, तो फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाएगा. COP की बात कही गई है इसके अंदर भी. अगेन बिल है सिर्फ अभी, तो नॉट रिक्वायर्ड. जब ये एक्ट बनेगा तब इसको देखेंगे. न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, तो गंधमर्दन हिल कहाँ पे है? ये ओडिशा में. इसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है. इट इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड आयुर्वेदिक पैराडाइज इन ओडिशा. तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदिक प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे.
यहाँ पे ये टेम्पल मिल रहा है नृसिंहनाथ टेम्पल जो कि नॉर्दर्न स्लोप पे है, एंड हरिशंकर टेम्पल भी यहाँ पे मिलेगा। यूएन सांग, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो मुझे बात लगी, विच इज यूएन सांग व्हेन ही केम टू इंडिया, उसके क्रॉनिकल्स में ही हैज डिस्क्राइब्ड द हिल श्राइन एज अ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। ठीक है, परिमल गिरी उसका नाम है, उसको डिस्क्राइब किया था यूएन सांग ने। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है अपना ऑर्डर ऑन इको सेंसिटिव जोन्स। तो बेसिकली एक ऑर्डर जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, जहां पे 1 किलोमीटर एरिया जो है ईएसजी का, इको सेंसिटिव जोन का, नेशनल पार्क के अराउंड, उसको मान लिया गया था कि हर जो हर नेशनल पार्क है उसके साइड में 1 किलोमीटर आपको छोड़ के जाना, बफर एरिया रखना पड़ेगा। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दिस कैन नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेके आप सब जगह 1 किलोमीटर का बफर जोन बनाओ। इट हैज टू बी इन लाइन विद दैट प्रोटेक्टेड एरिया के जोन के हिसाब से, तो इट हैज टू बी स्पेसिफिक टू दैट एरिया। क्यों ये किया गया वापस अपना ऑर्डर रिवाइज? बिकॉज सेंटर और स्टेट्स ने क्या बोला कि जो विलेजेस आती है इस 1 किलोमीटर एरिया में, वो अफेक्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वहां पे उनका लाइवलीहुड एंड उनका रहन सहन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। 2022 order will not be applicable to ESGs for which draft and final notifications have been issued. National parks जो interstate borders पे है वो भी इसके अंडर नहीं आएंगे। यहाँ पे no mining will be allowed either within the national parks या फिर in the 1 kilometer radius. कोई भी developmental activities undertaken within ESGs should follow the MOEFCC 2011 guidelines. So this is it from the environment PT365 updated. We have basically covered both the updated as well as the normal PT365 for environment. So that's it. Thank you. So I hope you liked the video. If you want to follow us for more such content, you can follow us on Telegram, Instagram, YouTube and Twitter. Here are the links for it. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.